अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। तो क्विंटेसेंस अपना पहली बार कश्मीर में मेंटरशिप सेशन और मेंटरशिप का पूरा 1 साल का प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जिसमें जितने भी बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको टेस्ट चाहिए, उनको कंटिन्यूअस मेंटरिंग चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वैल्यू एडिशन कैसे इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स में, उनको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग की एनरिचमेंट कैसे करनी है, नोट्स को बेहतर कैसे बनाना है, कंटेंट कहां से पढ़ना है। ये सारी चीजें इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है क्विंटेसेंस 360। ये 360 इस तरीके से बिकॉज इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की स्टेज तक का आपका कंटिन्यूअस मेंटरशिप होता रहेगा। अब ये हम पहली बार 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केसेस में ये पॉसिबल है, आप आ सकते हैं इसमें, और ये आपका शुरू हो चुका है। तो आज जो इंटरेक्शन था क्विंटेसेंस में बच्चों के साथ, इट वाज वेरी वंडरफुल। द रीजन इज कि बच्चों ने क्वेश्चन पूछे और कोशिश की जितने जैसे आंसर दे पाऊँ और उनके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। और दूसरा, आई ट्राई टू बी लिटिल मोर ब्लंट। बच्चों को मे भी थोड़ा हार्श लगा हो, बट रियलिटी जो थी उनको उनके सामने रखी मैंने। और थैंक यू टू तहलील सर, जिनको शॉर्ट नोटिस में मैंने कहा कि दैट आई वांट टू कम, तो उन्होंने कहा कि यस यू शुड कम। तो इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और दूसरा, जो मेरी प्रेपरेशन स्टेजेस पे उन्होंने मेरे को हेल्प की, उसके लिए आई विल बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बिकॉज यही फेजेस होते हैं जब आप लो फील करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई एक कंधे पे आपका हाथ हो। सो तहलील सर का वो एक हाथ था। तो ही इज एसोसिएटेड विद क्विंटेसेंस, मॉक वगैरह यहीं दिए हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी नाइस इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। बच्चे भी ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं, अभी यंग है, जो बैच इनका है, बट विद द टाइम आई एम श्योर कि जो इनकी फैकल्टीज हैं, मेंटर्स हैं, वो उनको प्रूव करेंगे और एक अच्छा बैच ऑफिसर्स का यहाँ से निकलेंगे। थैंक यू। Warm greetings to the talented students, committed educators, respected speaker, and all the individuals present here at Quintessence. I'm truly thrilled to stand before you today as we embark on a journey of inspiration and exploration. Welcome to this special seminar designed to ignite the flames of ambition and possibility in each and every one of you. Today we have with us a dignified personality, Mr. Suraj Sir, who secured rank 67 in the recently held UPSC CAPF exams. Before we introduce our speaker, our faculty head, Mr. Tahleel Shah, has asked me to share a few words for today's gathering. Tahleel Sir says, I have been waiting eagerly for this moment. The opportunity to introduce someone who holds a very special place in my heart and in the journey of our institution. A candidate who has not only qualified this exam multiple times, but has also won over everyone he has worked with through sheer resilience, humility, and unwavering passion. I'm talking about Suraj, someone I met around 4 years ago in 2022. I still remember our first interaction. He was soft-spoken, slightly reserved, and unsure of whether he truly belonged in the league of successful aspirants. But what caught my attention was not Suraj, it was his younger brother. You see, his brother was more eager, more passionate, more certain that Suraj would make it. And that for me was the first sign. I have always believed that when someone close to you believes in you with such intensity, there must be something special in you. That belief became a lens through which I saw Suraj, not just as a student, but as a promise waiting to be fulfilled. While many in the coaching space told him that he still had a long way to go, that he wasn't ready, I was one of the few who said, you have what it takes. And not because he was already polished or perfect, but because I saw the fire and potential, and most importantly, the purpose. Suraj wasn't just chasing success for himself. He carried a deep desire to make his parents proud, to contribute meaningfully to the society, and to be a representative of what Jammu and Kashmir can offer to this country. But as life often does, it tested him. He didn't qualify in the first attempt, and then a year later, I met him again. And this time, the transformation was profound. The same Suraj now stood before me as a confident, self-assured individual.
He had taken every setback and turned it into strength. He had grown not just in knowledge, but in character. That's when I knew he's arrived. Since then, Suraj has continued to prove himself. He has cleared the UPSC CAPF exam, qualified the civil services mains, and appeared for the interview, and stayed consistent in his preparation and mindset. At every stage, we stayed connected, and I've seen him evolve into someone who isn't just successful, he is worthy of service. This is the first time I've ever taken initiative to introduce a candidate like this personally. I couldn't be there physically today, but this was just something I didn't want to miss. Suraj isn't just a name on a list. He's a symbol of what belief, persistence, and grace can achieve under pressure. Suraj, thank you, not just for making us proud, for being the kind of person this country needs in the services. You are a role model for the youth of Jammu and Kashmir, and I truly hope you continue to visit Quintessence IAS, guide our students, and inspire the next generation. Because when someone like you gets elected, it's not just a personal victory, it's a victory for every teacher, every mentor, and every hopeful parent who dares to dream big through their child. Thank you so much, and congratulations once again. So without further ado, let's embark on this journey together, and may you find the inspiration you seek and the determination to pursue a career that can change the course of history. Thank you for being here today, and let's make the most of this remarkable opportunity. Let's all call Suraj sir on stage to hear what he has to say for us. And before that, I would like to call Mr. Rohan sir on stage so that he can felicitate our guest. Please. Start. Good morning, everyone. Good morning. Yeah. My name is Surya Prakash. I come from district Samba. I have qualified CAPF 2022, and I have given 2 mains of KS, in which the second one I qualified, become a civil servant KS. Oh, my photo is there. Surya Prakash. Achha, then in the 2024 UPSC CSE, I have given mains. I gave the interview, but couldn't make it to the finalist. So ये थी थोड़ी सा वो जो एग्ज़ाम में था. इसके अलावा मैंने दिए CDS के 4 CDS क्वालिफाइड. SSB के लिए नहीं गया, मन ही नहीं था. 2 FCAT क्वालिफाइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, रिटर्न. SSB देने नहीं गया, मन ही नहीं था. मुझे चेयर दो यार, मैं बैठ के करूँगा. इसको थोड़ा इनफॉर्मली रखेंगे, ठीक है? जो आपके क्वेश्चन होंगे मुझसे पूछ लेना, जितना मैं बता पाऊँगा. ठीक. तो आई गेव 4 CDS, देन FCAT, देन CAPF. 3 CAPF जिसमें 2 में रिटर्न नहीं हुआ था, 3rd वाले में रिटर्न हुआ. उसी साल फिजिकल पास हुआ, देन इंटरव्यू, देन फाइनल सिलेक्शन. ऑल इंडिया 67. वो पहली नौकरी लगी थी 5 साल की मेहनत के बाद. ठीक, तो शुरू से शुरू करते हैं. थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा, तो दैट आप रिलेट कर पाओ. अगर कुछ उसमें दिखेगा तो चूज़ कर लेना, ठीक है? बाकी वाला एक इधर से सुनना, इधर से निकाल देना, ठीक? डोंट टेक इट सीरियसली. तो 2018 में हुई ग्रेजुएशन. राजपुरा गांव है सांबा में, मैं वहाँ से आता हूँ. घर में पहला मैं था वो बच्चा अपने ग्रैंडफादर के उसमें जिसने फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन की थी. मैं पहला था. उसके बाद मेरी बहन और मेरे भाई ने चलो बाद में की, मैंने पहले की. तो GDC कठुआ कॉलेज में, कठुआ आपने सुना होगा ना, तो वहाँ पढ़ता था. देन ग्रेजुएशन 18 में हुई. 16 एंडिंग, जब 16 वाला सेशन था, 16 में क्या हुआ कि फाइनेंशियल कंडीशन घर की इतनी ठीक नहीं थी. सो आई डिसाइडेड कि घर वालों से पैसे मिलेंगे नहीं एडमिशन फीस के लिए. मेरे को 5500 चाहिए थे उस दिन एडमिशन के लिए, क्योंकि 2016 में 15 में हुई थी एडमिशन कॉलेज में. तो घर वालों से लिए थे, तो घर वालों ने जैसे जैसे दिए थे मुझे पता थे. तो नेक्स्ट ईयर मैंने डिसाइड किया यार पैसे तो मिलने नहीं है, इसका कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा. तो मैंने किसी से बात की, यार ट्यूशन पढ़ाते हैं. उसने मुझे आइडिया दी ट्यूशन पढ़ा. तो ट्यूशन किसकी पढ़ाएंगे? तो मैथ की कोई पढ़ा रहा था, फिजिक्स की भी कोई पढ़ा रहा था, केमिस्ट्री की कोई पढ़ा नहीं रहा था. तो मैंने डिसाइड किया चलो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा. तो फिजिक्स वाले टीचर ने मुझे 5 बच्चे दे दिए केमिस्ट्री के लिए. मैं रिसेंटली स्कूल पास आउट था, 2nd ईयर कॉलेज का स्टार्ट हो रहा है. तो 11th-12th के बच्चे क्यों आएंगे ट्यूशन पढ़ने? वो तो सोचेंगे ना कि किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास चलते हैं. बट फिर भी वो 4-5 बच्चों का आई एम स्टिल थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मेरे से पढ़ाई की. तो मैंने 5 बच्चों से शुरू किया ट्यूशन पढ़ाना. फिर ट्यूशन पढ़ानी शाम को. सुबह क्या करना, एक स्कूल ज्वाइन कर लिया प्राइवेट, कि 1-1.25 घंटा पढ़ाऊँगा, मेरे को आप 4500 दे देना मंथली. 1.25 घंटा पढ़ाऊँगा. सुबह उठना, पहले जाना प्राइवेट स्कूल पढ़ाने. क्लास खत्म हुई, मोटरसाइकिल पकड़ा,
गगवाल पहुंचे, वहाँ से बस लेनी है, बस 50 मिनट में पहुंचाएगी कॉलेज, 9:40 पे पहुंचाएगी, 39 पे, 9:40 पे होगी क्लास, गेट से भाग के जाना, क्लास में बैठ जाना। शाम को जब कॉलेज से वापस आना तो आते आते गगवाल में ट्यूशन पढ़ानी, उसके बाद फिर गाँव में ट्यूशन पढ़ानी। तो लंच तो छोड़ो, ब्रेकफास्ट भी नहीं होता है कई बार। मेरी मदर इसीलिए मेरे से दुखी थे पिछले 4-5 साल की, तो खाना नहीं खाता। तो खाना कैसे खाएंगे, खाना खाया नहीं जाता है ना। घर की कंडीशन जब आप देखते हो कि देयर इज नो वन टू सपोर्ट, आपकी बैकिंग है नहीं, कोई पीछे खड़ा होगा नहीं, तो देन फिर हथियार आपको खुद लेनी पड़ती, कमान संभालनी पड़ती है। और फादर से मांगने की स्टेज में जैसे आप हो, तो फादर से मांगने की हिम्मत होती नहीं, होती है नहीं होती हिम्मत यार। तो उस एज में फिर ये करनी पड़ी चीज़ें। फिर ये चला, मैंने 7 साल ट्यूशन पढ़ाई, तैयारी चलती थी साथ में और साथ साथ में ट्यूशन भी चल रही थी। कोविड में ट्यूशन पढ़ाई, कोविड में दुकानें बंद थी सारी, 2020 और 2021 में 2 साल। तो मेरे फादर गोल्ड स्मिथ है, हमारे गांव में दुकान है छोटी सी, तो खर्चा तो घर का खर्चा तो होता ही है, अब खाना तो खाना ही है नहीं, तो उसमें भी ट्यूशन पढ़ानी पड़ी। जो खर्चा था, जितने पैसे ट्यूशन 2 साल में आए थे सारे मैंने अपने उठाए और किसको दे दिए, फादर साहब को, ये हैं और ये। और मेरे फादर साहब ने कभी मेरे सामने मेरी तारीफ की नहीं, वो करते भी नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए अपने उसकी। किसी और को कहेंगे कि यार आई एम प्राउड ऑफ माई सन, किसी और को कहेंगे, तो इससे ज़्यादा क्या ही सुनना पसंद करोगे आप। तो कोविड निकला, फिर आर्टिकल 370 टूटा। मैं हूँ पंजाब से, मेरे ग्रैंडफादर है पंजाब से। देखो स्टोरी क्या बनती है, मेरे ग्रैंडफादर है पंजाब से। 2018 में स्टार्ट की तैयारी, 19 में आर्टिकल 370 टूट गया। उससे पहले मेरा स्टेट रिजल्ट नहीं था, आई वॉज नॉट द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 19 में वो टूटा, मेरे को डोमिसाइल मिला। 21 में केएस के फॉर्म निकले। 19 से लेकर 21 तक तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर ही रहा था, आंसर राइटिंग कर रहा था, वो मैं सारा बताऊंगा क्या क्या किया। आंसर राइटिंग कर रहा था, 21 के फॉर्म निकले, प्री हुआ, मेंस दिया, मेंस हुआ, इंटरव्यू में जाके 20 नंबर से रह गया। ठीक, उसके 1 महीने बाद फिर से 2022 के मेंस से 20 जनवरी को आया था रिजल्ट। 20 जनवरी 2022 को 2021 के केएस का रिजल्ट आया था, मेरा नहीं हुआ था। उसकी भी एक अलग स्टोरी है, वो बताता हूँ बाद में। 1 महीने बाद था फरवरी में, 20 फरवरी को 2022 केएस का मेंस प्री ऑलरेडी हो चुका था पास। 1 महीना घर वाले इधर रो रहे हैं कि 21 में इसकी सिलेक्शन नहीं हुई, और साथ में घर में भी थोड़ी हुआ था कोई पंगा किसी रिलेटिव के साथ, तो वो वहाँ रो रहे हैं और मैं अंदर कमरा बंद करके, जिस दिन रिजल्ट है उसके नेक्स्ट डे बैठ गए थे कि अगले 1 महीने में मेंस लिखना है। वो मेंस लिखा, 27 टेस्ट लिखे थे मेंस के उस 28-29 दिन में, डेली टेस्ट 2-2 भी लिखे हैं। और इस बार जब यूपीएससी का मेंस दे रहा था, मैंने 3-3 टेस्ट लिखे 1 दिन में, 9 घंटे। ठीक, मेंस दिए, जून में आया रिजल्ट 2022 के मेंस का, मेंस हो गया पास। मेरा छोटा भाई, जो उसकी अभी बात कर रहे हैं छोटे भाई की, यार उसके वो नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, अगर वो नहीं होता ना तो मैं यहाँ नहीं होता। ये मेहनत है या वो है, वो सब ड्रामे हैं। यू नीड समवन जो आपको बैक करता रहे। मैं जब तैयारी में था तो मेरे घर की सारी कमांड मेरे छोटे भाई ने संभाल ली पीछे से, क्योंकि मेरे को तो 8-10 घंटे पढ़ना है, अब घर के काम कौन करेगा, सब्जी कौन लाएगा, फाइनेंसिस कौन देखेगा, वो मेरे छोटे भाई ने दी। जैसे उसने कमांड संभाली, उसको ये फायदा हुआ, उसकी मेजोरिटी जल्दी आ गई। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो मेजोरिटी जल्दी आ जाती है। ऐसा क्यों है कि जिन लोगों के फादर से नहीं होते उनके बच्चे ज़्यादा मैच्योर होते हैं, ये रीज़न है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कंधों पे, देन यू बिकम मैच्योर। तो रिजल्ट आया, बड़े खुश, गाड़ी में बैठे थे मामू जी के साथ, किसी को बताया नहीं था 22 वाला दिया पेपर या नहीं दिया। मेरे मामा बैठे साथ में और वो पीछे, मैं इधर बैठा हूँ, पीछे वो बैठा है। रिजल्ट आ गया, उसने मेरे को रिजल्ट आ गया, ठीक, चुप, कोई शोर नहीं। नेक्स्ट फिर इंटरव्यू था, इंटरव्यू के लिए कश्मीर आना पड़ा, पहली बार श्रीनगर आया। और जो परसेप्शन था श्रीनगर को लेके, वो था डर था। जिसने विजिट नहीं किया वो तो वही देखेगा ना, जो न्यूज़ में है, जो सुनी सुनाई बातें हैं कि नहीं ये वहाँ तो गोली मार देते हैं, ये हो जाता है, वो नहीं। तो मेरे मन में भी था। तो अच्छा क्या हुआ, सोलीना में पीएससी है ना, पीएससी के रोड क्रॉस करके सामने इंडियन गेस्ट हाउस है, वहाँ रूम मिल गया। तो मैं कहा ये भी चलो ठीक हो गया, तैयार श्यार होकर निकलेंगे, इंटरव्यू देंगे। तो चले गए इंटरव्यू देने। इंटरव्यू सेकंड हाफ में था, इंटरव्यू दिया, 6 मेंबर, 7th नहीं थे, 6 ही थे। तो आई स्कोर 178 इंटरव्यू में, हाईएस्ट दिया था 183, तो मेरे ठीक ही था 178, गुड इनफ। देन रिजल्ट की बारी आनी थी। तो पीएससी का वो तो मशहूर है, जिस दिन लास्ट इंटरव्यू खत्म होगा उसी दिन रिजल्ट आएगा। 21 वाले में भी यही किया था, वो रात को 12:30 बजे रिजल्ट निकाला, हमारी बुरी हालत हो गई। तो रिजल्ट आया अगस्त में, 22 अगस्त को। 7 अगस्त को आया था CAPF का। मैं ट्यूशन पढ़ा के सीढ़ियाँ उतर ही रहा था, तो वहाँ माहौल पूरा बना हुआ था कि रिजल्ट आना टेलीग्राम पे,
रिजल्ट आ गया, सीढ़ियाँ सड़क क्रॉस कर रहा हूँ, जहाँ से निकला सड़क क्रॉस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यार अपना नाम ढूंढ रहा हूँ, नाम ना मिले। फर्स्ट 40 में एक नाम मिला सूरज, पर मेरा सूरज प्रकाश है, मैं यार ये नहीं है। फिर मैंने सर्च किया तो वो आया 1 of 1, होता है ना जब PDF में शेयर वो करते हैं, इसको टाइप करते हैं, तो 1 of 1 मैच फाउंड 67 पे था। मैंने घर पे फ़ोन किया, उसके बाद तो जो घर में हुआ नज़ारा ही आ गया। तो उसके 15 दिन बाद फिर केएस का आ गया था। तो सिंपल नहीं रही है, मतलब कि आपको होगा ना स्ट्रेट लाइन में रही है प्रेपरेशन, वो किसी की भी नहीं रहती है। तो वो ऊपर नीचे ग्राफ होते ही एट द एंड ये होना चाहिए कि आप 0 लाइन से ऊपर फॉल करने चाहिए, बस नीचे नहीं। क्रेस्ट पे फॉलो करेंगे तो सब सही है, और हर एक का नंबर आता ही आता है। किसी की जर्नी लंबी होती है, किसी की कम रहेगी, बट बात ये है कि जब आप इसी क्लास में बैठे बैठे ही ऑफिसर अगर बन गए तो पीएससी आपको पिक कर लेगा। अपने माइंड से ये बात निकाल देना कि ये पेपर है, पेपर पास करने के बाद हमें ऑफिसर बनाया जाएगा, ऐसा है ही नहीं। आप इस क्लास में बैठे बैठे ही आपकी सोच में, आपके लिखने में, आपके बात करने में, आपके कंडक्ट में जब ऑफिसर वाली क्वालिटीज़ आ जाएंगी ना, पीएससी को चला जाएगा मैसेज कि इसको पिक करके अब चेयर पे बिठाने का टाइम आ गया। ये मत सोचना कि एग्जाम पास होगा फिर हम ऑफिसर बनेंगे, चांस नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। आप ऑफिसर पहले बनते हो, उसके बाद आप सेलेक्ट होते हो। मैं इंटरव्यू दे रहा था जब ये 22 वाले जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई, चेयरमैन साहब के साथ एक बंदा बैठा है, उनके राइट साइड में बैठा है। राइट साइड वाला जब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था ना, तो ये चेयरमैन साहब के लेफ्ट साइड वाला बंदा चेयरमैन सर को कह रहा था कि ये लड़का सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है। उन्होंने धीरे से बोला, पर साइड आई से दिख जाता है और सुनाई भी दे जाता है, क्योंकि इन दोनों ने जो क्वेश्चन पूछे थे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, केस स्टडी बेस्ड थे, उनके आंसर मैंने दिए थे। जब इन्होंने शुरू किया इस साइड वाले ने, वो भी कंसेप्चुअल था, हाउ टू मैनेज, जो वेस्ट के ऊपर था कोई क्वेश्चन। तो फिर चेयरमैन सर के साथ वाले इंसान ने कहा कि ये लड़का सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है। तो इसी काइंड के इंप्रेशंस बनते हैं। कैसे? ऐसे थोड़ी बनेंगे कि इंटरव्यू पास होने के बाद बनोगे अफसर, जॉब ऑफिसर बन जाओगे उसके बाद पिक कर लेंगे आपको। और इस साल जब इंटरव्यू दिया था CSC 2024 में, जब आप उस रूम में जाते हो ना, पूछो मत यार, बड़ा मजा आता है। वो आधा घंटा, वो 6 साल की मेहनत जो आपने दिन रात पेज फाड़े हैं, लिखे हैं, स्क्रिबलिंग की है, न्यूज़पेपर पढ़े हैं, वो मैगजीन्स पढ़ी हैं, विजन की, किसी की डेली MCQ सॉल्व की हैं, आंसर लिखे हैं, वो सारी मेहनत करने के बाद वो सारी एक तरफ और वो 30 मिनट उस कमरे में एक तरफ, वर्थ इट है वहाँ जाना। जब UPSC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मेंबर, चेयरमैन हो, 2 सेक्रेटरीज हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 2 एक और बंदे बैठे हो साथ में, तो आप सोचते हो कि यार मैं कहाँ था, गांव में क्या कर रहा था एक रूम में बैठ के, नाउ आई एम सिटिंग हियर। तो वो बंदे में कैलिबर बन जाता है, तो वो चीज़ें अर्न करी पड़ती हैं। अब कहोगे कि कोई मुझे बना देगा, वो नहीं बनते, किसी के बनाने से थोड़ी अफसर बनते हैं। अफसर बनोगे खुद जब वो माइंडसेट डेवलप होगा। वो चीज़ें याद करो ना आप, पिछली, मज़ा बड़ा आता है। वो नोटबुक से सारी संभाल के रखी हुई हैं जिनमें आंसर राइटिंग की है, शुरू से लेके एंड तक। कुछ नोट्स हैं, पेन की स्टोरी। जो पेन मैंने जेल पेन यूज़ करते थे 5 रुपये वाला, आप कौन सा यूज़ करते हो? बॉल पेन, जेल यूज़ करो ना, बहुत स्मूथ चल रहा है, अपना अपना है। वो रिकमेंड भी करते हैं, कौन सा पायलट का कौन सा रिकमेंड करते हो? करते हो रिकमेंड यार? 5 रुपये का पेन ले, जेल पेन, वो खाली किए सारे, 250-300 पेन होंगे खाली, उनके खोखे एम्प्टी वो रखे हुए अंदर, सो दैट कि अगर सर्विस में कहीं बाद में जाके कुछ उल्टा सीधा करना हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कि अब से नहीं होगी, तो देन वो एक सिंबल रहेगा, ये चीज़ें करके यहाँ पहुँचे हैं, सो वी हैव टू उसकी कदर करनी है, ऐसे नहीं छोड़ देना है। तो वो बुक्स वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो ट्रेजर टाइप की हैं, वो ट्रेजर बन गई हैं अब, तो उसको यूज़ करो। बाकी अभी कौन सा क्लासेस चल रही हैं इसकी, इनकी सर? पॉलिटी चल रही है, ठीक। लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं सारे, पढ़ो, अच्छी है। उसमें वो बुक लिस्ट पता ही होगी सारी, वो पढ़ो। बाकी आप अपने डाउट्स पूछो यार, मैं यहाँ सिर्फ ऐसे बातें शातें करने आया हूँ, कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, जो पूछना पूछ लो, जितना आता होगा बता देंगे। हाँ 2021 वाले में
स्टोरी सुनना। 21 का रिजल्ट आया, सर को पता होगा जब पीएससी रिजल्ट देती है तो 2 अनेक्शर्स होते हैं, अनेक्शर ए एंड अनेक्शर बी। अनेक्शर ए में होते हैं द कैंडिडेट्स विच हैव गिवन द इंटरव्यू, उन सभी के मार्क्स, जिन्होंने भी 700 बच्चे ने इंटरव्यू दिया है तो 700 के 700 अनेक्शर ए में उनके मार्क्स कि टोटल मार्क्स कितने हैं। अनेक्शर बी में होते हैं द कैंडिडेट्स, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। रिजल्ट आया 12 बजे, ठीक, रात को। तो मुझे पता नहीं था कि 12 बजे आ जाएगा। मेरा छोटा भाई, मैं यहाँ सोया हूँ, छोटा भाई यहाँ सोया बेड पे, मेरी मम्मी घर पे नहीं थी। तो 2:30-3 बजे मेरी आंख खुली, मेरा छोटा भाई मेरे राइट साइड पे रो रहा है कि सिलेक्शन नहीं हुई। ही इज क्राइंग देयर, वो लेटा हुआ है। तो मैंने उसको पूछा मेरे को उठाया क्यों नहीं, तो वो मुझे कहता है कि मैंने सोचा कि तूने रिजल्ट देख लिया, तुझे पता चल गया कि तेरी सिलेक्शन नहीं हुई है, तूने मुझे उठाया नहीं कि ये रोएगा। वो तो उसने उस दिन देखना था, उसकी किस्मत में था, उसने देखना था, उसने देखा। 2:30-3 बजे, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरा उसको मैं, देखो मेरे लिए एग्जाम पास करना बड़ी चीज़ नहीं थी, तो आज भी नहीं है। मेरे लिए बड़ी चीज़ थी कि मेरा ये छोटा है ना जो, वो स्टेबल रहे और घर में स्टेबिलिटी रहे। यार एग्जाम पास करना वो इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। तो आपको ऐसा भी लगेगा कि मे बी इसका निकल गया तो ये कह रहा है, पर नहीं, मैं उस टाइम पे भी वैसा ही था। मैंने उसको ये बात कही कि मैंने अभी हथियार छोड़े नहीं है, आई एम रेडी, 1 महीने बाद इसका एग्जाम है, फिर दूंगा, क्या हुआ, नहीं सिलेक्शन कोई चक्कर नहीं। तो माइंडसेट वैसा बन जाता है। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक उसको चुप कराता रहा, कॉन्फिडेंस देता रहा। फिर जैसे 5:30 बजे के बाद फिर वो पूरा कॉन्फिडेंस हासिल है, ये है वो है, कोई नहीं हम कर लेंगे, ये है वो, पूरा तैयार हो गया। पर मैंने उसको ये बात भी बोली कि सुबह रिजल्ट जब देखेंगे ना लोग, तो सिर्फ अनेक्शर 1 देखेंगे, बी देखेंगे ही नहीं। और वही हुआ पूरे गाँव में। क्या हुआ, अनेक्शर ए देखा, उसमें मेरा सीरियल नंबर था 211 इंटरव्यू के हिसाब से। तो गाँव में क्या फैल गया कि दैट ही हैज सिक्योर्ड रैंक 211। उस साल वैकेंसी थी 187 थी, तो 211 कहाँ से आएगा रैंक। अब ये चीज़ें किसको समझाएंगे, नहीं समझा सकते। घर पे रोना चल रहा है, मेरी मदर रो रही है, हम सुबह सुबह उनको लेने गए गोवाल, आते आते बता दिया कि नहीं हुआ। फादर साहब मेरे थोड़े दलेर टाइप के, वो कोई चक्कर नहीं, देख लेंगे, वो दलेरी वहीं से आई है मेरी, ऊपर से वो पंजाबी खून है सर। तो मदर हुए, अब मदर जब गेट से बाहर जाए किसी भी काम के लिए, तो जो लोग मिल रहे थे वो मुबारकबाद दे रहे। एक तो ऊपर से सिलेक्शन हुई नहीं है, ठीक है, ऊपर से कह रहे हैं कि थोड़ा मूड़ा लगी है, मुबारक हो। मम्मी तो उनके सामने कुछ ना कहे, अब कहे क्या कि चुप और घर आके रोए। अब मैं मेंस की तैयारी करूं जो अगले महीने है, या इनको चुप कराऊं। फिर मुझे आया 2-3 दिन बाद आया थोड़ा गुस्सा। फिर मैंने कहा कि यार समझो इस बात को, सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, 20-22 दिन बचे हैं, मेरे को ऑप्शनल पढ़ना है, मेरे को ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करनी है, केमिस्ट्री ऑप्शनल है, उसके वो न्यूमेरिकल्स देखने हैं। तो अगर इन चीज़ों में फंसा रहा तो फिर तो अगली गर्मियाँ भी खत्म है। उनको किया साइड लाइन, बैठा रूम में, छोटे भाई को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी थी ऑलरेडी, उसको वो समझ आता है कि इसको क्या चाहिए इस टाइम पे। अभी अगर उसको पता है कि इसको पीस चाहिए तो वो मुझे समझा देगा, वो आंखें दिखाएगा बस 2, बाकी चुप करके बैठ जाएंगे सारे। तो सेट किया सारा, 1 महीना कंटिन्यूसली पढ़ाई की। 22 में जब रिजल्ट आया 22 का KS, उसके बाद जब मम्मी घर से बाहर जा रही है, तो मेरा रैंक 13, तो अच्छा रैंक था। उसके बाद जब मम्मी घर से बाहर जा रही है तो फिर तो मुबारकबाद लेनी बनती ही है, ठीक है। 6 महीने तक मैं अपनी मम्मी को ये पूछता रहा कि मम्मी अब ठीक है, मज़ा आ रहा है, हाँ मज़ा आ रहा है। क्योंकि जो 21 में आंसू आए थे ना, वो आपको थोड़ा पुश करते हैं कि इंसान में ऐसी वो है कि इंसान अपने ऊपर चाहे जो मर्जी ले ले, बट जिसको अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट सबको होती ही है, ठीक है। अब कई जैसे बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं या बाहर रहते हैं, उनको मे भी थोड़ी 2-4% कम होगी। तो आप चाहते हो कि घर वालों पे वो जो भी चीज़ निकले मेरे से फिल्टर होकर फिर वहाँ पहुँचे। आई विल डिसाइड कि कौन सी चीज़ पहुँचनी कौन सी नहीं, कोई थोड़ी डिसाइड करेगा। तो फिर मैं 6 महीने तक पूछता रहा कि मज़ा आ रहा है, मम्मी बड़ी खुश, बहुत मज़ा आ रहा है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। फिर CAPF का जब सिलेक्शन हुई तो 2 थी नौकरी। देखो सोसाइटी क्या क्या करती है। अब मैं कह रहा हूँ ठीक है, दोनों नौकरियाँ लगी ना। रूमर्स क्या फैलते हैं, रूमर्स कैसे फैलते हैं, व्हेन पीपल कैन नॉट डाइजेस्ट कि आप इस लेवल के हो चुके हो, फिर वो रूमर्स फैलाना शुरू करते हैं। मेरे वहाँ रूमर ये चला था कि दैट दे हैव गिवन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस जॉब। पर मेरा रिप्लाई क्या था कि हम देते हैं 2 बैग भर के आपको मनी, अपने बेटे की सिलेक्शन कराओ वहाँ, जितना मैंने दिया उसे डबल दे दो, कराओ सिलेक्शन वहाँ से। लोगों ने ना सिलेक्शन वाला फेज देखा, लोगों ने वो फेज नहीं देखा जिस रूम में रहते थे। मैंने 39 डेज तक सन नहीं देखा था, विंटर्स में नो सनलाइट, 39 डेज। मॉर्निंग सर्दियों के दिन थे, 6:30-7 बजे
और फिर रात को 9 बजे निकले बाहर रूम से, वो कर्टन्स किए हुए कुछ नहीं। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई के बिना पॉसिबल नहीं था, मैं अपने घर पे पढ़ता ही नहीं था, वो भी पढ़ता था चाचा जी के घर पे। अच्छा वो भी स्टोरी सुन लो, देखो चीज़ें कैसे अलाइन होती हैं। वहाँ उस टाइम समझ नहीं आती, जब आप बाहर से देखोगे ना सारे फ्रेम्स इकट्ठे हो जाएंगे। 19 में CDS का एग्जाम दिया, February 3 को, 3rd या 1st था। मैंने क्या दिमाग में मेंटालिटी क्या थी कि मैं जून 2018 से पढ़ रहा हूँ, लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, आर्ट एंड कल्चर के लिए वो पढ़ ली है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ ली है, तो मेरा तो CDS पास हो ही जाएगा। तो चले गए CDS देने, और CDS में रंग लाल, कोई कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं, कुछ नहीं, नो गाइडेंस एट ऑल। फरवरी में जब गया तो जब उसी दिन आते सारी मुझे लग गया कि ये वो चीज़ है नहीं जो आसानी से निकलेगी। फिर मैं गया चाचा जी के घर 19 में February, मेरे घर से 300 मीटर की दूरी पे। मैं कहा चाचा जी एक रूम चाहिए, पढ़ना है। तो उन्होंने अपने घर की चाबी मुझे दे दी कि मेरी तो अभी हो रही है ट्रांसफर पुणे, मैं जा रहा हूँ पुणे 3 साल के लिए। 3 साल टाइम पीरियड, उस टाइम मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा मैं पुणे जा रहा हूँ, घर की चाबी अपने पास रख। मैंने अपनी किताबी चाबी ली, उनके एक रूम में शिफ्ट हो गया, वहाँ पढ़ाई शुरू कर दी 3 साल तक। बीच में 2020 में कोविड आ गया, 21 में कोविड आ गया, वो घर आई नहीं, मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही थी, मुझे चाहिए था टाइम। भगवान ने कहा कि चल ठीक है कोई नहीं, टाइम ले ले। वो घर नहीं आए, मुझे रूम था, मैं पढ़ता रहा। और उस रूम में जब मैं चला गया घर से, वापस नहीं आऊँगा मैं, वापस आऊँगा शाम को, रात को। बीच में आफ्टरनून में मेरा छोटा भाई आता है टिफिन लेके, 3 साल तक छोटा भाई डेली टिफिन लेके, कई बार सुबह खाना भी नहीं खा के आता, तो ब्रेकफास्ट में भी लेके आता था। फिर वो फिर शाम को वो आएगा, हम दोनों साथ में जाएंगे घर 8:30 9 बजे। और घर वाले कर रहे होते थे वेट कि डिनर साथ करेंगे। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार बिना सपोर्ट सिस्टम के मैं इंडिविजुअली चीज़ कर लूँगा, तो वो ऐसा होता है नहीं, और ना ही होगा। ये बैकअप आपका काम करता है। कईयों के फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त उनका बैकअप, मेरे केस में फैमिली थी, वो आज भी है। ये थी 21 वाली स्टोरी। बड़ा रुलाया यार लोगों ने मेरी मम्मा को। अच्छा कोई और क्वेश्चन बोलो यार। ठीक, 2020 में क्या है, इनसाइट्स ऑन इंडिया का इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा। उन्होंने कोर बैच शुरू किया, कोर बैच, वो जिसमें सिर्फ वो मेंस के आंसर राइटिंग करवाते थे। तो उससे 2 महीने पहले क्या किया, आंसर राइटिंग शुरू की मार्च में। कैसे, 1 आंसर पर डे, नहीं लिखा जाता, 1 आंसर पर डे। 15 दिन तक वो किया कि एक ही आंसर लिखना, 15 मिनट लेके, 20 मिनट लेके। आते नहीं वर्ड्स, जब ना कोई सिखाने वाला हो तो चीज़ें नहीं आती। यहाँ तो आप इंस्टीट्यूट में हो, सर बता देंगे कि यार ऐसे इंट्रो लिखनी है 2 लाइनों की, फिर बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन। मेरे केस में नहीं था, 1 आंसर पर डे, फिर 2 महीने तक 2 आंसर्स पर डे। इवैल्यूएशन करवाई IS नेटवर्क करके एक है ऑनलाइन, 1000 पर मंथ, 2 आंसर्स पर डे। 10 में से अगर 5 नंबर आ रहे हैं, छोटे भाई को दिखाएंगे, दोनों खुश है कि नहीं ठीक है अच्छा लिख रहे हैं। जिस दिन आगे 3, उस दिन हम दोनों सैड कि यार नंबर कम आया यार, इसको इंप्रूव कैसे करना है। फिर अप्रैल के बाद, मार्च अप्रैल में वो किया 2 आंसर्स पर डे, देन ज्वाइन कर लिया कोर बैच। इसका 58 टेस्ट, उसमें से कम 30 लिखे होंगे। पहला टेस्ट लिखा था ना जिस दिन, 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, आई स्कोर्ड 92, 250 में से। मुझे कॉन्फिडेंस आया क्योंकि टॉपर्स की कॉपी जब देखी थी, उसमें उसको 85 मिल रहे हैं, 88 मिल रहे हैं, वो टॉप 100 में रैंक लेके आ रहा है कैंडिडेट। मैं कहा मेरे 92 आ गए, तो इसका मतलब पढ़ाई शढ़ाई तो की है और है सिस्टम, हो सकता है। कोर बैच किया 2020 वाला, 30 टेस्ट लिखे होंगे। देन 2021 में प्री नहीं हुआ, केस का प्री हुआ, फिर भी कोर बैच ज्वाइन कर लिया था, स्कॉलरशिप मिल गई थी। 21 में लिखा, 22 में लिखा, 3 साल तक लगातार आंसर राइटिंग नहीं छोड़ी। उसका फायदा कहाँ हुआ, जब केएस के मेंस हुए, उसका फायदा तब हुआ। 2-2.5 साल आंसर राइटिंग की, केएस आए, पहले अटेम्प्ट में निकल गए। ये तो ड्रामेबाजी, डराते क्या कि पेपर नहीं कंप्लीट होते जी, कि 3 घंटे में जीएस के पेपर कंप्लीट नहीं होते। 2021 में जब मैं गया मेंस लिखने, पीएससी में हो रहे थे जम्मू में, तो मैं बड़े बच्चे यार 300 बच्चे आए हो पेपर देने, 300-400 एक ही हॉल में। तो उस टाइम पे एक ही वो था कि पेपर कंप्लीट करना। 12-13 क्वेश्चन अच्छे से लिखे, बाकी वालों को एवरेज करके 3 घंटे में कंप्लीट कर दिए, फ्लो चार्ट वगैरह यूज करके।
तो मैं उसको कह रहा हूँ अपने छोटे भाई को कि यार ये कोई वो नहीं है, हो जाएगा मेंस। जब 2022 में देने गया मेंस, तो ये तो मुझे पता था कि पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे चाहिए था रैंक, उसके लिए थोड़ा क्वालिटी ऐड करनी थी। क्वालिटी के लिए स्पीड पे तो था ही कमांड उस टाइम पे। देन फ्लो चार्ट्स यूज हुए, डाटा यूज हुआ, कोड्स यूज हुए, लिख दिया मीन्स अच्छी हैंड। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट तक सेम हैंड राइटिंग। 21 वाले में हैंड राइटिंग गड़बड़ाई थी लास्ट में, जब 5 मिनट पर क्वेश्चन रह गए या 4 मिनट पर क्वेश्चन। 22 वाले में ऐसा नहीं हुआ था, पहले से लेके लास्ट तक सेम। ये वही है कि आप डेली आंसर राइटिंग करते थे, आप टेस्ट लिखते थे, जो पिछला हार्डवर्क आपने किया वो। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी ही करनी है, जैसे 2 आंसर्स पर डे वाला मैंने कहा, वो आपने करना है। इसको लिख लेना, इसको करना है, सभी नहीं कर पाएंगे। 2 आंसर्स पर डे या 3 आंसर्स पर डे ऐसा करना है। उसके बाद आपने 5 क्वेश्चंस, देन 10, फिर टेस्ट पे आ जाओ, टेस्ट दो। तो ऐसे करके आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। दो नोटबुक्स ऐसी हैं जो बिना वैल्यूएशन वाली हैं, तो जो 2 आंसर्स पर डे वाले से पहले की हैं, उसमें हम कुछ भी लिखते हैं। शुरू के जो आंसर लिखोगे ना, कम से कम 100 आंसर शुरू का, वो होगा सबसे वर्स्ट वाले आंसर्स आपके। ठीक, जीएस के आंसर्स का ऐसा है कि जब आप लिखना शुरू करते हो ना, 50 क्वेश्चंस के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आंसर्स लिखने हैं। प्लस ऐड ऑन क्या किया था, टॉपर्स कॉपीज, 5 आंसर्स पर डे रीड करने सिर्फ। फिर ऐसा भी हुआ कि 2 आंसर्स पढ़े, सोचा कि चलो लिख के देखते हैं, जो इसने लिखा सेम का सेम ही लिख के देखते हैं कि क्या 7 मिनट में लिखा जाता है। नहीं लिखा जाता। टॉपर्स का आंसर, अपना आंसर, बड़ा मिसमैच है। ऑल्दो मैंने रीड करके ही लिखा है, सेम नहीं आएगा। ठीक, खुद नहीं पता, ये पता होगा ना, सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं पॉइंट्स, ऐसे तो आएंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो रीड किए ही होंगे ना, वो स्ट्रक्चरिंग बन रही है। अपने आंसर के स्ट्रक्चर को टॉपर्स के आंसर के स्ट्रक्चर के साथ मैच करके देखो कितनी वेरिएशन आ रही है। और दूसरी बात, टॉपर्स के साथ ना ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उनकी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर दो, आपकी अलग से है। जब आप मेंस लिखोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी अलग से है, पीएससी को वो भी पसंद आ जाएगी, पर सेम नहीं होगी कभी भी। ऐसे का आंसर लिखो यार, ऐसे लिखने पड़ेंगे, वैल्यूएट करवाने पड़ेंगे। जब कम मार्क्स मिलेंगे, जो फीडबैक आएगा उसको रीड करो, देन यू विल गेट टू नो कि क्या ऐड करनी है चीज़ें, क्या नहीं करनी है। मेंस का सिर्फ एक ही तोड़ है, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होगी। दूसरा ये है चीज़ें हैं सेल्फ रियलाइजेशन वाली, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि ऑफिसर आप यहाँ बनोगे, उसके बाद सिलेक्शन होगी। ये सेल्फ रियलाइजेशन खुद की होगी, जब तक आपको खुद को नहीं हो रही तब तक कोई दूसरा बंदा आपको ऑफिसर बना नहीं सकता। मे बी टू ब्लंट हो ये स्टेटमेंट, बट है। लिखो, राइटिंग इवैल्यूएट करवाओ। ठीक, शॉर्ट नोट्स बनाओ जब 2-3 रीडिंग आपने कर ली हो लक्ष्मीकांत की, उससे पहले नहीं, फायदा नहीं है। 2-3 रीडिंग लक्ष्मीकांत की कर ली। शॉर्ट नोट्स क्या है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको भूलती हैं। अगर आपको पेज सजाने के लिए लक्ष्मीकांत को कॉपी पेस्ट करना है तो मत करो, वो टाइम वेस्ट है। लक्ष्मीकांत रखो एक बुक, किसी इंस्टीट्यूट की समरी ऑफ लक्ष्मीकांत, दूसरी आ गई, बुक रीड कर ली, समरी को रीड कर लो 2-3 बार। उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स क्या होंगे, जो हैंड रिटन होंगे। उसमें क्या होगा, जो चीजें आपको भूलती हैं। अगर आपको पता है यूपीएससी का आर्टिकल कौन सा है, 315 से 323 पार्ट 15, अगर वो चीजें याद है तो क्यों लिखनी है। केसेस की जजमेंट्स आपको भूलती हैं, लिख लो एक साइड पे, केसेस एंड देयर जजमेंट्स, वाइट शीट पे, खत्म। 2 वाइट शीट्स, जजमेंट्स खत्म। क्रक्स लिखना है बस कि गोलकनाथ केस क्या था, केशवानंदी भारती केस क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, बस खत्म। आप लोगों में से मेंस लिखा किसी ने पहले, किसी ने नहीं लिखा, सारे प्री वाले हैं। प्री दिया कोई पहले, ये फ्रेशर्स क्लास है। यूपीएससी का प्री दिया, हो गया
कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। सारे फ्रेशर्स हैं। अभी अपनी पॉलिटी पढ़ ली है, उसके बाद इससे पहले कोई पढ़ा सब्जेक्ट इन्होंने? ज्योग्राफी पढ़ लिया है। आप इसको क्लास नोट्स देते हो या लिखवाते हो यहाँ पे? ठीक, सारे लोकल ही हो आप श्रीनगर से? ये चीज़ मुझे पहले पूछनी चाहिए थी यार। अच्छा, बाहर से हैं, अनंतनाग से हो, यहाँ स्टे करते हैं सारे रेंट पे? बढ़िया, ठीक है। वो डेट थोड़ी आई 24 वाले की, 25 वाले की डेट्स आई हैं एग्ज़ाम की? नहीं, अभी नहीं आई। ठीक है, देखो तैयारी होती है जब एग्ज़ाम की डेट्स नहीं आई हो। जिस दिन एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई उस दिन बस वो कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट होता है। फिर ये याद रखना, अगर वेट करोगे ना कि एग्ज़ाम डेट पे, अभी डेट नहीं आई, पेपर पता नहीं कब है, तैयारी होती है पहले कि जैसे एग्ज़ाम डेट्स निकले, कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई, एग्ज़ाम दिया, पास, ट्रेनिंग की इंपा में मज़े से। अब सोचो कि एग्ज़ाम आएगा, ये सारा प्री प्लान। ये सारे आप 22-23 एज में होंगे सारे, हैं है ना? तो अभी बड़ा अब टाइम है आपके पास, टेक एटलीस्ट 2 ईयर्स अपने आप को पक्का करने के लिए, सो दैट 24-25 में यू बिकम एन ऑफिसर। वो यहीं से बनोगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करके और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके। ठीक, पूछो कोई और सवाल। ठीक, सब कुछ हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जब हम एक फ्रेम को देखते हैं ना, फ्रेम्स को डिवाइड करके, अपनी लाइफ को ही देख लो। पिछले कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे, जब आप इवेंट में होते हो तो फिर चीज़ कुछ और होती है, पर जब बाहर से देखते हो ना कुछ टाइम बाद, वो सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। उसी तरीके से ये है, प्रियम्बल कोई पढ़ा रहा है, आप रिवाइज भी कर रहे हो, इधर से सेपरेशन आप कोई पढ़ा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हो। जब लक्ष्मीकांत कंप्लीट होगी ना, सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी अपने आप, उसकी टेंशन मत लो। अभी डाउट्स क्या है, इनसिक्योरिटीज क्या है, क्या रहता माइंड में? ठीक, देखो कॉन्फिडेंस तो किसी को आएगा नहीं, कॉन्फिडेंस आता है पेपर टैकल करने का बस। वो भी धीरे धीरे विद द टाइम इवॉल्व होता है इंसान में। अगर आप कहोगे ना कि मैं 4 किताबें पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, इसमें से पेपर आएगा, नहीं आएगा, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वो यूपीएससी है ना, जेकेपीएससी या यूपीएससी, उसका मन कहीं से भी डाले। आपने सीखना है कि पेपर को टैकल कैसे करना है। आप गलत चीज़ को पकड़ रहे हो ना, यू आर रनिंग बिहाइंड कंटेंट। दूसरा, मेरे पढ़े हुए क्वेश्चन आ जाए, वो नहीं आएंगे यार, समझो बात को। आप कहोगे ही इज टू हार्श, हार्श नहीं है, रियलिटी है यार। आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना है कि 4 ऑप्शन में से एलिमिनेशन कैसे करनी है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन डाला होगा तो उसने कुछ सोच के डाला होगा ना कि आंसर ऐसे ढूंढ रहा है, आपने वो ढूंढ रही है, वो चाबी कहाँ है आंसर निकालने वाली। अगर आप भागोगे ना कंटेंट के पीछे कि मेरा पढ़ा हुआ आ जाए, 5 साल 6 साल 7 साल जितना मर्जी टाइम लगा लो, ऐसा नहीं होगा। यूपीएससी में यार मेरे को मेंस में मार्क्स कम थे, जॉब लग चुकी थी, जॉब लगने के बाद पोस्टिंग होगी काजीगुंड में, तो उस चक्कर में आंसर राइटिंग हुई नहीं, ऑफिस भी जाना था। ऑल्दो आई ट्राइड की लिखता रहूँ कुछ ना कुछ, लिखे थे 20-22 टेस्ट पर GS1 और GS3 में मार्क्स कम आए थे उस वजह से। बोलो महाराज। ठीक, यार ये सेम चीज़ें मेरे माइंड में आती थी वहाँ में, क्योंकि इसी फेज से निकले हैं। तो शुरुआत में यही चीज़ें कि सर कितने घंटे पढ़े, सर ऐसा होगा या नहीं होगा, सेम क्वेश्चन आते थे, अच्छी बात आने चाहिए, यही था। तो ये ना विद टाइम हो जाएगा प्रिपेयर, डोंट वरी।
क्लास नोट्स भी हैं, आपने खुद भी तो बनाए हैं। एग्जाम देखो, PYQ को देखा करो बीच बीच में कि जो नोट्स बना रहे हो इसमें से आते भी हैं क्वेश्चन नहीं। जैसे प्रियम्बल वाले चैप्टर में, आपने चैप्टर में नोट्स बनाए, क्लास वाले भी पढ़े, वो भी पढ़े। अब KS का पेपर खोला, प्रियम्बल पे कौन सा क्वेश्चन आया था तो चेक करो, उसमें से आता है नहीं आता, वो पता चल जाएगा। जो आपके खुद के नोट्स हैं ना, वो है परफेक्ट नोट्स जो खुद बनाए हैं कहीं ना कहीं से। और बार बार जब रिवाइज करोगे ना तो ये भी पता चल जाएगा कौन सा डेटा पेज के कौन से कॉर्नर पे लिखा है। तो पेपर में होता है याद, जब ऑप्शंस आते हैं 4 तो बंदा इंसान कहता है ओ ये लेफ्ट वाले पेज पे साइड में है, वो कॉलम बनाया है डब्बा। तो ये तभी होगा जब बार बार रिवाइज करोगे उसको। मेरे पास 40 पेज के होंगे प्रीलिम के नोट्स, वो फाइल ही पढ़नी है बस, वाइट शीट वाली। उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, बस। और इन्वायरमेंट के तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती ही है, खत्म। हम्म हम्म ठीक। हम्म हमने आंसर लिखना क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरी बात कि आपका आंसर बेटर कैसे होगा उसमें, यही होगा ना, हमने तो मार्क्स ही लेने एट द एंड। जो चीज़ पढ़ी है जब तक उसको कॉपी पे नहीं उतारोगे कैसे पता चलेगा। आपने अपनी तरफ से कर दिया 50%, आपका ऑप्शन कंप्लीट है, आपने आंसर कितने लिखे हैं, इवेल्युएट करवाएं। यार अपनी चीज, अपनी मदर किसी को लगती है बुरी, अपनी मम्मी तो सबको अच्छी लगती है, किसी थर्ड पर्सन से इवेल्युएट करवाओ, वो बताएगा क्या कमियां हैं। यार मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है कि अगर आप भाग रहे हो ना, दैट यू आर रनिंग, तो फिर आपकी इवोल्यूशन नहीं होगी। फिर जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ ना देखना कि जो ट्रांजिशन आती है, वो ट्रांजिशन नहीं आएगी इफ़ यू आर रनिंग। कि ये 2 दिन में पॉलिटी, 2 दिन में इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी, फिर प्री, फिर पास, फिर मेंस, नहीं होगा। और जिन बच्चों का हुआ है ना ऐसा, वो सर्विस में जाके खज्जल हुए हैं फिर, क्योंकि राइट टाइम पे जो इवोल्यूशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। प्री, फिर वो लेते हैं प्री मैच्योर डिसीजंस, फिर उनको ब्रंट लेना पड़ता है सीनियर्स का, जिनकी सिलेक्शन ऐसी हो जाती है। और जिनको रगड़े खा खा के होती है ना, दे नो हाउ टू टैकल। तो ये आपका लर्निंग फेज है, बेस्ट फेज है, प्रेपरेशन का फेज, बेस्ट फेज। पढ़ना ही है, पढ़ना है, खाना पीना सोना और पढ़ना, बस यही करना है। वो गाने सुनो, ये बेस्ट फेज है। इसको अगर बर्डन की तरह लोगे तो फिर नहीं होगा। मैं यहाँ पहुंचा हूँ ना टेबल के इस साइड में, मैं कह रहा हूँ बेस्ट फेज यही है। तो यही है ना, हमारे वहाँ डोगरी में पता क्या है, एक कहावत है, बगानी थाली में दूसरों का लड्डू थोड़ा बड़ा लगता है। बगानी मतलब दूसरे की थाली में, 2 थालियाँ बड़ी हैं, मेरी वाली में लड्डू जो है सेम साइज का उसमें बड़ा है, पर ऐसा लगता है ये थोड़ा बड़ा है। जिस स्टेज में आप हो आपको लगता है ये मजे कर रहे हैं। अब मैं यहाँ इस साइड हूँ टेबल के, तो मैं जब सोचता हूँ पीछे देखता हूँ तो वो बेस्ट फेज है। प्रेपरेशन के टाइम पे ही एक फेज ऐसा आया था, मैंने अपने छोटे भाई को कहा सर कि मैं सुबह उठना 8:30 ब्रेकफास्ट, देन पढ़ाई अप टू 8, 8:30, 9, फिर घर खाना खाया सो गए। मैंने उसको छोटे भाई को कहा कि मैं सारी ज़िंदगी ये चीज़ कर सकता हूँ, सारी ज़िंदगी 8:30 से 9:30 सिर्फ पढ़ना है। रीज़न मैं बताता हूँ, रीज़न क्या है, जब चीज़ें कनेक्ट होनी शुरू होंगी ना डॉट्स, जब आपको चीज़ पता चलनी शुरू होगी कि यार यार किताबें बातें करती हैं आपसे, ऐसा लग रहा है सामने से कोई बोल रहा है, वो भी एक ट्रांजिशन फेज है, इवोल्यूशन है। उस फेज पे जब पहुंचोगे आपको पता चलेगा कि अभी तो सेंस में भी ना बन रही हो बात की, पर सर को पूछो कि किताबें बातें करती हैं। जब पढ़ाई में मजा आना शुरू हो जाए ना, मजे का मतलब क्या है, जब आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कितने ग्राम डालनी है, कौन सी ज़्यादा डालनी है, कौन सी कम डालनी है, किस चीज़ को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसी साल आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। जब तक ये क्लैरिटी नहीं है तब तक सिलेक्शन के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। ध्यान कहाँ है फिर, इधर आओ, थोड़ा जोर से बोलो नहीं तो।
पढ़ने के साथ सेटिस्फाई नहीं होते मतलब? यार प्रेजेंट मूवमेंट में जीना सीखो ना। क्या इशू आ रहा है? एज क्या है आपकी? 23। तो टेंशन क्या है? सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही? हम्म। ध्यान से सुनना, कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं वो आपने पढ़नी है, कुछ एनसीईआरटीज हैं इन्होंने बताया है वो पढ़नी है, क्लास में लेक्चर चल रहा है वो आप कर रहे हो, इसके अलावा आपको और कहीं नहीं जाना है। दैट्स इट। वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। मैं कह रहा हूँ इस बात को समझो। अगर आपको एग्जाम में बैठ के कुछ भी नहीं आता बट यू नो कि इस 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कैसे निकालना है, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। 90% 95% बच्चे कहाँ फॉल्टर करते हैं? आप सब एक ही क्लास में पढ़ रहे हो ना, सबका प्री पास होगा ही नहीं। चाहते तो सभी है ना पास हो, बट जब रिजल्ट आता है कईयों को होता है कईयों को नहीं होता। गलती कहाँ आ रही है? सेम क्लास में पढ़ रहे हो, एग्जाम में जाके बैठ के फॉल्टर कर रहे हो यार, वहां प्रेशर नहीं ले पा रहे हो। तो इसका क्या वो रीजन क्या है? पर्सनैलिटी वीक है, दैट यू कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस। एग्जामिनर यही चाहता है। आंसर है क्वेश्चन का 4th, उसने ए पार्ट में ऐसा वो दिया हुआ है कि आपको लग रहा है आंसर ए ही है, आपने बाकी वाले 3 रीड ही नहीं किए, आंसर था 4th। तो है पर्सनैलिटी। मेंस में कम से कम भी 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे हर एक पेपर में जिसका कोई आइडिया नहीं है, ना करंट में पढ़े हैं ना कहीं पढ़े हैं, जो मर्जी कर लो, आंसर तो लिखना है ना। तो वहां 5 बैठूंगा यार, नहीं 15 ही आते हैं, 15 ही लिखते हैं, 15 में पास नहीं होंगे। फिर वहां बैठ के हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है वो डिसाइड आप करोगे ना। वो आपका डिफॉल्ट जो आपने प्रैक्टिस किया वो डिसाइड करेगी कि कैसे आएंगे नंबर। तो भरोसा रखो यार, जो पढ़ रहे हो, जहाँ बैठे हो, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट चल रहा है, एक क्रेडिबिलिटी होती है कि इंस्टीट्यूट की, वो गलत थोड़ी बताएंगे। वो तो चाहेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दो यहाँ से। सेटिस्फैक्शन ही अपने आप में भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस रखो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसी से आएगा। सॉरी, ठीक ठीक ठीक। ठीक ठीक। कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग से निकालो पेपर। यार मैं बात करूंगा सीधी, मेरे से गोल मोल एक्सपेक्ट मत करना, ठीक? जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी गोल मोल अगर सुनना तो वो भी मैं कह सकता हूँ। अगर पेपर पास करने कितने नंबर चाहिए? 33% चाहिए, 200 में से 66 आएंगे ना। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन के, 25, 15 क्वेश्चन लगा लो उसके रीजनिंग के, बाकी छोड़ो, करने नहीं है। सी सेट पास करने का सिंपल तरीका, जिसको ये पता चल गया मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वो सी सेट पास कर गया। मैथ वाले क्वेश्चन में अगर 2 मिनट से मेरे ज्यादा लग रहे हैं, मैंने करना ही नहीं है, बाढ़ में जाओ, मैंने करने ही 50 है, 30 तो वैसे भी नहीं करने। GS1 में ये सोच के जाना 10 क्वेश्चन तो वैसे भी करने ही नहीं है, 90 ही अटेम्प्ट करने हैं या 15 ही करने नहीं है, 85 करने हैं। तो देखना प्रेशर कैसे रिलीज होता है। शुरू के 5 क्वेश्चन देखे कुछ नहीं आता तो ठीक है, 15 ही नहीं करने ही नहीं है। जो चीजें न्यूज़पेपर से डाटा मिलेगा, ध्यान रखना, अपने नोट्स को ना अलग अलग मत करना, एक ही जगह पे कंसोलिडेट करने ला जरूरी। जैसे किसी टॉपिक नोट्स बना रहे हो, उसके आगे 2 पेज छोड़ दिए, 2-3 पेज छोड़ दिए। कहीं से भी टॉपर्स की कॉपी रीड कर रहे हो, वहां से कोई कोट मिल रहा है, कोई सेंटेंस, कोई डायग्राम, वही नोट्स में ऐड कर देनी है बस, और कुछ नहीं करना। कहीं से भी यहाँ घूम रहे हो, कहीं किसी दुकान के बाहर कहीं बोर्ड पे हेडलाइन लिखी बड़ी अच्छी सी, इन्वायरमेंट के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, वहीं खड़े होकर फोटो खींच लिया, घर आके नोट्स में ऐड कर लिया। यही है प्रिपरेशन। आप सोचोगे कि मैं रूम में बंद हो जाऊं, सोशल इंटरेक्शन वो तो जीरो करना ही है, सोशल मीडिया शुड बी जीरो, बाहर से इंटरेक्शन जीरो, कोई चाचा नहीं, कोई ताया नहीं, कोई कुछ नहीं, नो पार्टीज, नथिंग एट ऑल। जो चीज़ अच्छी कहीं से भी मिल रही है विच इज़ रिलेटेड टू एग्जाम, वो ऐड होगी नोट्स में,
और वहां जाके रेप्लिकेट करेंगे। नहीं हो पा रहा है, मैं इसको 2 आंसर दूंगा। पहला, ये रियलिटी है या आइडियल है वो आई नो बेटर, ठीक। दूसरा, जो चीज आप नहीं कर रहे हो ना, कहीं दूसरी जगह बैठ के कोई दूसरा बंदा कर रहा है और एग्जाम में आपकी सीट वो ले जाएगा, एक कंपटीशन है, समझो इस बात को। आप अभी ना इस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ नहीं रहे। जो चीज अवॉइड कर रहे हो ना करने से, वो कहीं दूसरी जगह बैठ के कोई दूसरा बंदा जिसकी सिचुएशन आपसे भी खराब है, वो जिंदगी के साथ लड़ रहा है और वो चीज कर रहा है, जब डी डे आएगा ना, लास्ट डे, वो बाजी मार देगा। उसके बाद फिर आप गिल्ट और रिग्रेट में नेक्स्ट ईयर फिर से आना एग्जाम देने। मेरी बात, एस्केप वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, वही मैं कह रहा हूँ। चीजों को हेड टू हेड फेस करना सीखो। सर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, रोना आ रहा है, ये हो रहा है, ये चीजों से डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक। ठीक, यस, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। ठीक। मेरी बात सुनना, अब ये एग्जाम कौन दे रहा है? आप। अपने आप को बेहतर कौन जानता है? आप। प्लानिंग करने तो आती ही है। मैंने अगर कोई टारगेट दिया है, वो उसको स्मॉल टारगेट में तोड़ के पूरा कैसे करना है वो आप जानते होंगे, ठीक। अब आप 1 बजे के बाद पढ़ो या पहले पढ़ो, वो आपकी इंडिपेंडेंस। आपको टारगेट दिया है कि इस महीने यार पॉलिटी कंप्लीट कर लेना, या मैंने करनी है, डिसाइड कौन करेगा? आप ही करोगे ना। तो जो छोटी प्लानिंग है, सब प्लानिंग कहते हैं उसको, वो कौन बनाएगा? मैं थोड़ी बताऊंगा कि 1 बजे के पहले पढ़े या बाद पढ़। अगर आपको दिन में सोना है तो सो जाओ, रात को पढ़ लो, डिसाइड आपने करना है। यही मैं कह रहा हूँ, दूसरे के कंधे पे बंदूक थोड़ी चलानी है, अपनी कमान अपने हाथ में लो ना। बोलो। ठीक। थ्री नहीं, 4-5 ईयर्स। अच्छा, जो तो बाहर से आए हैं यहाँ श्रीनगर में, उनके लिए तो इजी है, मैक्सिमम वही है जो रेंट पे रह रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए तो इजी है कि आसपास ही रिलेटिव नहीं है, काम कहने वाला कोई नहीं है, ठीक। जो लोग घर पे बैठ के तैयारी करते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहता है कि आसपास के लोगों को पता होता है कि दैट ये घर पे ही है। जैसे मुझे गाड़ी चलाने आती है, कार, तो मुझे क्या कहेंगे, यार थोड़ा सा इधर जाना था यार, आधा घंटे के लिए, तो हमारा ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर मतलब कि चलाने वाला नहीं आता, तू चल ले यार। तो हम लोगों को नाम कहनी आती नहीं है गाँव में। और दूसरा, वो वही बंदा कहेगा जो जिसने आपको हेल्प की थी किसी टाइम पे, तो आप रिगार्ड रखते हो उसके प्रति कि चलो इसने भी हेल्प की थी तो मेरा फर्ज बनता है। तो ऐसा सिस्टम हुआ तो प्रावा, चलो ठीक, चलो ठीक, एक बार हो गए यार, ज़्यादा ही हो गया, सारा फ्रीक्वेंसी थी मिसमैच हो रही है, पढ़ाई हो ही नहीं रही, कंटिन्यूटी आ ही नहीं रही। फिर आया गुस्सा, गुस्सा इन द सेंस मैंने उनको कहा यार देखो, आप लोगों को पता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ उसकी, और आपको ये भी पता है कि पढ़े लिखे हो, ये भी पता है कि कितना टफ है, और दूसरा आइसोलेशन चाहिए, और एटलीस्ट पढ़ने, इंसान को पढ़ने का वो दो। तो 2-4 बातें उनको कही, उसके बाद से वो बंद। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन जो मैंने बोलने का लिया। अगर उस टाइम पे स्टैंड खड़ा नहीं होता ना अपने लिए, तो चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो पाती। विटामिन एन कहते हैं इसको,
पावर टू से नो। जो चीज़ नहीं करे वो नहीं करनी। दूसरी बात है, जो चीज़ अभी आपकी प्रेपरेशन में आ रही है उसको छोड़ देना है। जो चीज़ आपको मेंटली इफेक्ट कर रही है, द वन जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, नहीं करनी है। दूसरी बात, सबसे सब कुछ डिस्कस नहीं करना। यू शुड नॉट बी डिस्कसिंग एवरीथिंग विद पर्टिकुलर पर्सन और दो चार। टेम्परेचर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो, पढ़ा है ना थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल। मेरी बात सुनना इस बात को, ये फुली इंप्लीमेंट की हुई है। आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैच नहीं होती, ठीक। जो लोग आपकी फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब आपके टेम्परेचर से ऊपर वाले हैं, ट्राई टू स्टे विद देम। जो हर बात पे आपको कह रहे कोई नहीं कर लेंगे, आप उनसे कह रहे हो कि यार ये चीज़ नहीं है, तो कह रहे कोई नहीं, बिना इसके भी हो जाता है, हो जाता वाले, दैट इट इज़ पॉसिबल, उनसे रहना। जो कर रहे हैं क्रिबलिंग, नहीं यार रिवाइज नहीं हो रहा, ये है पटवारी के फॉर्म निकले वो लगा लेते हैं, 4th क्लास निकला वो लगा लेते हैं, उनको अवॉइड करो। यही है एज 22, 23, 4, 5, 6 बस। इसमें अगर अपनी कमान अपने हाथ में रखी, हाई टेम्परेचर वाले लोगों के साथ रहे, नैया पार है। अगर रहे ना उन जो क्रिब करते रहते हैं हर दिन कि नहीं जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर कुछ नहीं होगा। देन यू विल रिग्रेट, क्योंकि बाद में फिर वो भी दोस्ती टूट जाएगी इनके साथ थी, लो टेम्परेचर वालों के साथ। यही फंडा है। हम्म। अच्छा, उसी में आप थे, ठीक। बहुत सारे हो गए हम्म। जब आप कॉलेज के बाद प्रिपरेशन करने बैठते हो 2 years 3 years down the line, you will see some cousin getting married, you will see some cousin getting a job, या कोई फर्दर स्टडीज पे जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि सब लोग अपनी लाइफ में आगे जा रहे हैं, मैं उसी कमरे में बैठा हूँ। स्पेशली जब आपको 1-2 अटेम्प्ट्स हो गए और आपका क्वालिफाई नहीं हो, एज एन एस्पिरेंट आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल कि मैं गिव अप कर दूं या मैं भी छोड़ दूं या मैं आगे करूं। सो व्हाट इज दैट ड्राइव और व्हाट इज दैट पुश उसको तो हेल्प करता है। सेकेंडली, सोसाइटी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, बहुत सारे इश्यूज की वजह से आज एक बहुत कॉमन ट्रेंड जो है, एंड इट इज अक्रॉस एग्जामिनेशन, मेंटली बहुत ड्रेन है पढ़ाई की वजह से नहीं, ठीक। बाकी जितने भी प्रेशर्स है, वो फैमिली का है, वो सोसाइटी का है, या किसी का भी है, वो हैंडल करने का तरीका। एंड थर्डली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका कम्युनिकेशन आपके पेरेंट्स के साथ कितना इम्पोर्टेंट है। इफ यू कुड थ्रो सम लाइट ऑन दीस थिंग्स तो बहुत एस्पेक्ट्स क्लियर हो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। ठीक, तो मैंने पहले बताया 2019 से पढ़ रहा था। अब जब सर आप एक रूरल एरिया से आते हैं ना, तो मेरे लिए तो बन गई थी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की कि बेटा अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, अगले 10 साल तक इस एरिया से कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सोचेगा नहीं। अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि तेरी एग्जाम्पल दी जाएगी फिर कि उनका लड़का स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, ट्यूशन पढ़ाता है, ये करता है, उसका नहीं हुआ तो आप लोग तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो पुश फैक्टर वो था, इट हैड बिकम ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी कि तुझे अब करना ही पड़ेगा। और जब CAPF का और इसका सिलेक्शन हुई तो देन मुझे लगा कि नहीं अब ठीक है। और मेरे अभी गांव के 5-6 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मेरे सिलेक्शन के बाद लोगों ने घर जाके अपने बच्चों को, 1-2 को मैंने सुना मारी पड़ी है, वो कह रहे थे हमें दिल्ली जाना है कोचिंग के लिए, तो उन्होंने मारा इसलिए कि वो देखो वो एक ही कमरे में बैठ के 2-2 नौकरियां, गैजेट नौकरियां वो ले गया। तो पुश वही था दैट इट हैड बिकम ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी कि मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैड एग्जाम्पल बन जाती। दूसरा प्रेशर, देखो सर मेरा तो ये था कि मेरे इतने ज़्यादा दोस्त रहे नहीं, ठीक, और मैं इंटरेक्शन भी बड़ा कम करता हूँ लोगों से अदर देन माई फैमिली। मैं मस्त रहता हूँ अपने घर पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। सोशल मीडिया का प्रेशर बंद था, इंस्टाग्राम फेसबुक 5-6 साल चलाए नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, कोई नहीं मरता आपके बिना,
या चल रही दुनिया। आपको अपना देखना ना, मुझे अपना टाइम यूटिलाइज करना है राइट डायरेक्शन में। याद रखना, अगर एनर्जी आपकी कहीं भी लीक हो रही है तो फुली फोकस तरीके से आपकी स्ट्राइक नहीं हो पाएगी, बिकॉज आपका माइंड कहीं और लगा हुआ है। यहाँ चाहिए फुली फोकस्ड माइंड, और एक नहीं 2 साल 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं, उसी जोन में रहना है। अगर जोन से बाहर निकले खत्म है, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रेशर्स को डील करने के लिए आउटबस्टर थे मेरी फैमिली। हमें लेना देना नहीं किसी से कुछ, ना यार ना दोस्त। शादियों की बात आपने की, जाता ही नहीं। मेरी बूजी के लड़के की लड़की की शादी, हम गए नहीं, मैं गया नहीं, नॉट अवेलेबल। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार बुरा मान जाएंगे, मान जाए क्या फर्क पड़ता है। एट द एंड मुझे अपनी फैमिली देखनी है ना। अगर मैं ही स्टैंड नहीं हुआ ना, फैमिली को कौन देखेगा। तो अगर आपकी सिलेक्शन की बात, सभी आपके साथ ही हैं, अभी परसों बात हुई उनसे। तो प्रेशर का डील करने के लिए सोशल मीडिया शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। व्हाट्सएप है तो वो भी बंद, नहीं चलानी है। मेरी बात मान लेना यार। अच्छा, वो क्लासेस के मैसेजेस वो कर लेना, पर इंस्टाग्राम फेसबुक शुड बी टोटली क्लोज्ड, शुड बी। ये मेरा सजेशन रहेगा यार। ये है एक तपस्या टाइप की चीज। बहुत कम लोग सेलेक्ट क्यों हो रहे हैं, बिकॉज इस तपस्या की भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। जो बच्चा फॉलो कर रहा है वो सेलेक्ट हो रहा है, चाहे कोई भी बैकग्राउंड से आ रहा हो। जो बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है वो नहीं हो रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप खुद से बातें कब करोगे? जब बाहर से कट ऑफ होगा। फोन छोड़ोगे, बाहर से कट ऑफ होगा, तब खुद से बातें होंगी। पर्सनैलिटी ग्रूम तभी होगी जब चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव जब देखना शुरू करोगे। तो उसके लिए कट ऑफ जरूरी है। कॉमन सेंस भी यही कहती है, तो उससे दूर रहना। और कम्युनिकेशन विद माई फैमिली, वही तो सपोर्ट सिस्टम था। मजे कर रहे हैं घर पे। मैं कह रहा हूँ आई एम वेरी ब्लेस्ड यार। दिल्ली नहीं गया सर पढ़ने कोचिंग के लिए, रीजन पैसे नहीं थे। मुझे कहा गया, मेरे फादर ने मुझे कहा था दिल्ली चले जा। मेरे गांव के केएस हैं 2011 बैच के। मैं उनके घर गया था पूछने कि मैं केएस की तैयारी करनी है, ग्रेजुएशन के बाद गया था कि केएस की तैयारी करनी है, कर लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था यस, बीइंग ए सिविल सर्वेंट मैं कह रहा हूँ कर ले। उनका सजेशन ये था कि दिल्ली चले जाओ। उन्होंने सजेशन देना था, उन्होंने दे दिया। पैसे कौन देगा? पैसे दे ही नहीं फैमिली के पास। देन आई डिसाइडेड कि नहीं जाऊंगा, और वो बेस्ट डिसीजन था, नहीं जाने वाला। दिल्ली में सेम पढ़ाई है। अब जिन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है उनके बच्चे जा रहे हैं दिल्ली पढ़ने। मिसिंग लिंक क्या आ रहा है? वहां जाके लोग डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं? मिसिंग लिंक क्या है? बातें नहीं हो रही। जो स्ट्रेस दिमाग में इकट्ठा हो रहा है वो बाहर नहीं आ रहा। घर वालों से बात करें 5 मिनट फोन पे, मम्मी क्लास है, बस खाना खा रहे हैं, ये बस। वो इंटरेक्शन खत्म हो गया। वहां जाके दोस्त बनेंगे इंटरेस्ट बेस्ड यार। फैमिली के बाहर जो भी चीजें आपको दोस्ती है, ये है, वो सारा है इंटरेस्ट बेस्ड। फैमिली के साथ जितनी बातें करोगे, ऑल्दो उनको वो चीजें समझ नहीं आएंगी। अगर आप उनको कहोगे मम्मी यार प्री की टेंशन है, सिलेबस नहीं हुआ, ये है, वो चीजें समझ नहीं आएंगी। उनके लिए तो बस ये है कि प्री देना है, प्री पास होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू। उनको वो चीजें समझ नहीं आएंगी क्योंकि वो उन्होंने तैयारी की नहीं ना कभी, हमारे वालों ने। उनको पता नहीं है क्या स्ट्रेस होता है। तो मैं तो उनसे बातें ही करता था घर पे। और एक चीज और एक होती है, वो इंटरव्यू चलो लेट है आपका, हॉबीज के लिए भरना पड़ता है। तो मैं भर रहा था हॉबीज। यार हॉबीज क्या भरें? तो हम मिडिल क्लास लोगों की क्या हॉबीज, कहाँ टाइम है? ठीक है इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, हॉबीज कहाँ? कि पेंटिंग है, राइटिंग है, पोइट्री। कहाँ से आएगी पोइट्री यार? कैसे आएगी पोइट्री? तो हॉबीज में लिख दिया प्लेइंग बैडमिंटन। हॉबीज वो लिखी जो आप प्रिपेयर कर सको। इंडिया के टॉप वुमेन और मेल के 3 नाम, डायमेंशंस, क्या चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, बस खत्म। मैं खेलता भी था बैडमिंटन, बस वही। फ्री के टाइम पे हॉबी थी रात को एक पेपर सॉल्व करना, 100 क्वेश्चन 1 घंटे में। मेंस के टाइम पे हॉबी थी रात को 9 बजे के बाद एक ऐसे लिखना 1.5 घंटे में। अब ये थोड़ी लिखूंगा राइटिंग एसेज। हमारी सर नीड बेस्ड है, गुजारा ही चल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है दैट यू हैव टेकन ए ड्रीम कि सिविल सर्वेंट बनेंगे। सारे नहीं कर पाते। सोसाइटी में देख लो आप,
तो उसके लिए भी जिगरा चाहिए डिसीजन लेने के लिए कि नहीं यार मैं अपने 2 साल 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूँ, मेरे को ये चीज़ करनी है। सारे नहीं कर पाते। तो आप तो ऑलरेडी बड़े ऊपर आ गए उनसे कि आपने डिसाइड किया कि हम करेंगे। मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री, नो कोचिंग, नो आंसर राइटिंग, नो टेस्ट सीरीज। मैंने ट्यूशन कौन सी पढ़ाई थी? तो चूजिंग केमिस्ट्री एज एन ऑप्शनल, वो इंटरेस्ट बेस्ड कुछ नहीं था, वो फाइनेंशियल नीड्स थी। अगर ऑप्शनल कोई और चूज कर लूँ और मेरे को 6 घंटे ट्यूशन कोई और पढ़ानी है तो होगा ना मिसमैच। 11th-12th वालों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, वहाँ से बेसिक स्ट्रांग हो गए क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना पड़ा, वहाँ से बेसिक स्ट्रांग हो गए, वही को मैंने यूज़ कर लिया वहीं पे। यार ट्यूशन कंटिन्यूस चल रही थी। मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये प्लान करना पड़ता है, प्रेपरेशन में प्लान करना पड़ता है। देखो ट्यूशन स्टार्ट होती है मार्च अप्रैल में, अप्रैल से लेके नवंबर तक सिलेबस खत्म, अक्टूबर तक खत्म। ट्यूशन पे 6 महीने में, अगले 6 महीने मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, जो पैसे ट्यूशन से मिले हैं उससे घर चलेगा। तो टेक्निकली मैंने पूरा साल कंटिन्यूस वो पढ़ाई नहीं थी कि 6 घंटे पूरा साल पढ़ा हो, वो 6 महीने थे जिसमें पढ़ाई होती थी अच्छी, बाकी टाइम तो 2 घंटे 3 घंटे होती थी। ठीक है, तो ये भी अपने माइंड से निकाल दो यार कि अगर आज के दिन 6 घंटे नहीं पढ़ा तो बस होगा खत्म। जो बैड डे हो ना, सभी का आता है, ऊपर नीचे सबका चलता है, उसमें याद रखना ट्राई टू हैव ए गुड स्लीप। पढ़ाई नहीं हो रही, चादर लेनी है, सो जाना है, नहीं पढ़ना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। कुछ मोमेंट्स आएंगे यहाँ जबरदस्ती करनी है, 14 घंटे पढ़ना है मेन से पहले, वहां करनी है, पर अभी कोई चक्कर नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है पेपर पास नहीं होगा। अभी है मेंस दे रही बैचमेट, तो शी वाज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, पर वो वही बात कर रही थी, वो जो लड़का नहीं कह रहा था सर नहीं हो रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही। तो मैंने उसको यही बात, उसको भी यही बात बोली कि जो चीज़ तू अभी अवॉइड करेगी ना, जैसे तू टेस्ट लिखना अवॉइड करेगी तो कहीं और कोई बैठ के लिखेगा और जब मेंस होगा एग्जाम उसमें वो तेरे को क्रॉस कर जाएगा। नेक्स्ट डे उसका फिर से कॉल आया, कह रही अब मैं समझ गई हूँ कि क्या करना है या क्यों करना है। उसको भी यही बात बता रहा था मैं। इस प्रेपरेशन में जो चीज़ आप अवॉइड करोगे ना करना, मेरा भरोसा करना, कोई बंदा कोई छोटी सी जगह पे बैठ के वो चीज़ वो कर रहा होगा, आपकी सीट खा जाएगा। समझ रहे हो ना? अपन यहाँ पे भरोसा रखो, भी कुछ नहीं हुआ, 6 महीने 1 साल अच्छे से अपने आप को तैयार करो, अपने टीचर्स पे भरोसा रखो, उनसे बात करो यार। थोड़ा फॉर्मल जो कर्टेन है ना उसको उतारो, थोड़ा इनफॉर्मल में आओ कि सर ये इशू है, करते ही होंगे सर डिस्कस। तो आपने मेंटर से अलॉट किए होंगे बच्चों को, ठीक, तो मेंटर से बात करो, कहो कि ये इशू आ रहा है, कैसा किया जाए, उनकी सजेशन लो, अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे कोई बात नहीं, किसी और से ले लो। एट द एंड अपनी कमांड अपने हाथ में रखनी है ना, कोई दूसरा तीसरा थोड़ी गाइड करेगा। और दूसरा, किसी की और बात सुन के अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, किसी थर्ड पर्सन की बात सुन के अपना कॉन्फिडेंस लो कभी नहीं करना है। और कोई तीसरा बंदा आके मेरी मेंटल स्टेट के साथ खेल गया तो फिर मेरा क्या फायदा यार। एक बड़ी ऐसी लाइन मैंने सुनी थी कहीं पे, इफ पीपल अराउंड यू आर एबल टू गिव टेंशन टू यू या एबल टू डिस्ट्रैक्ट यू, देन यू आर ए यूजलेस पर्सन। कोई तीसरा बंदा थोड़ी खेल जाएगा यार माइंडसेट से। मैं जिस घर से आ रहा हूँ या आ रही हूँ, मुझे पता है ना मेरा घर कैसे चलेगा, और मुझे किस टाइम पे कौन सा स्टेप लेना है, कोई तीसरा थोड़ी बता देगा कि ये करना है, कि तू ऐसा कर और मैं तेरी लग जाएगी। ओए किसी के कहने से सिलेक्शन नहीं होगी, ये चित्र रखना, याद रखना बात, इस बात को। सॉरी टू से, पर टीचर्स मेंटर्स ये आपको रास्ता ही दिखा रहे हैं, चलना आपको खुद है। उस रास्ते में चलते चलते खड्डे कहाँ आ रहे हैं ये भी बता देंगे, पर उन खड्डों से जंप आपने ही करना है। समझ रहे हो ना? जैसे आपका नाम क्या है? सुहिमा। सुहिमा को बताया सर ने कि सुहिमा 3 घंटे का पेपर होगा,
उसमें तेरे को 10-12 क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन ऐसे से कर लेना, 8 क्वेश्चन जो होंगे उनको एवरेज या अबव एवरेज लिखने की कोशिश करना। लिखने किसने है? और वो 12 क्वेश्चन कौन से होंगे यही छांटेगी ना, सर थोड़ी छांट के देंगे। तो 3 घंटे लिखने के बाद फिर ये आएगी, फिर बताएगी सर आपने कहा था 12, ये देखिए 13 निकले, मुझे लगा 13 मुझे अच्छे से आते हैं, 7 एवरेज मैंने लिखे आ गया। सर ने तो डायरेक्शन ही देनी है, अब सर आपने ही भरना है खुद। हर एक घर की कोई ना कोई डिफिकल्टीज या सिचुएशंस रहती ही हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि ये सॉल्व कैसे होंगी। सब अच्छे घरों से आ रहे हैं, कोशिश करेंगे अच्छा ऑफिसर बने, लोगों के लिए सहूलत हो। हमें क्या चाहिए, सैलरी आ जाएगी अकाउंट में, घर चल जाएगा, बस जो ड्यूटी गवर्नमेंट ने दी है उसको अच्छे से निभा देंगे, और जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना वो बड़ी सही है सर्विस में। जब किसी का अच्छा करोगे, किसी का घर नहीं है, मेरे बड़े बैचमेट्स हैं, वीडियोस लगे हुए हैं, किसी का घर नहीं है, 25 सालों से घर नहीं है, टूटा हुआ है, वो बारिश आती है तो पानी गिरता है। अटल पेंशन वो पढ़ते हो ना, आवास योजना वाला कौन सा है, हाँ प्रधानमंत्री आवास योजना पढ़ते होंगे, उसके अंडर घर बनते हैं, तो उस बैचमेट ने उसको घर बना के दिया, और जो उनके घर वाले फिर आते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। तो उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्या होगी जब आपके साइन से किसी का घर बन जाए, उसको छत मिल गई, तो मज़ा आता है। जो उस तरीके का इंक्लिनेशन रखता होगा कि हमने किया यार, ये गली नहीं थी पक्की गली बना दी, पैसे सरकार के, उसको फैसिलिटी देनी है, हम फैसिलिटेटर दे रहे हैं। 2 भाइयों का झगड़ा था लैंड को लेके, आप तहसीलदार हो कहीं पे, वो आए आपके पास, पिछला 50 साल से उनके फोर फादर ग्रैंडफादर सारे लड़ते ही आ रहे हैं, आपने कोई डिसीजन किया, लॉ वगैरह पढ़ा, वो भी भाई खुश है ये भी खुश, वो कह रहे हैं ठीक है यार फैमिली से हमारी साथ में आ गई, फिर से झगड़ा चल रहा था। तो ये सर्विस आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, पर प्रोवाइडेड आप उस सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाओ। वो एलिजिबिलिटी है ये सर्विस के, मतलब कि इस बेंच के इस साइड वाली लाइफ को भूल जाओ कि हमें क्या मिलेगा या क्या होगा, उसको भूल जाओ। हमें प्रेपरेशन क्या करनी है, प्रोसेस क्या है, उसको फॉलो करो। फिलहाल वही चीज़ रखनी दिमाग में फॉर द नेक्स्ट 2 years। देखो 7-8 घंटे तो सोना है, नींद से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी नहीं किया, और आज भी नहीं करता। नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं 5 घंटे सो रहा हूँ उसके बाद मेरी आउटपुट नहीं आ रही, और वही अगर मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा या 2 घंटे एक्स्ट्रा सो रहा हूँ आउटपुट आ रही है। तो इट इज़ बेटर टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 hours। उसके बाद 10-12 घंटे पढ़ते थे यार उन 6 महीनों में, 10 घंटे एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ ट्यूशन नहीं होती थी ना तब उन पीरियड्स में। तो जब ट्यूशन है तो तब 5-6 घंटे, 4 घंटे, जब ट्यूशन नहीं है 8-9-10 घंटे। वो उन्हीं दिनों में एक फेज था जिसमें 39 डेज तक सनलाइट नहीं देखी थी, उन्हीं दिनों में था, सर्दियों में। वो रहते फॉग भी रहती है ना उस चक्करों में। बाकी आप ऑन एन एवरेज पढ़ो यार 6-7 घंटे 8 घंटे, क्या करना है, और काम तो है नहीं, या कुछ और काम भी करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो कुछ, सॉरी घर की कंडीशन देखो ना। इफ़ यू वांट कि मुझे घर पे भी कुछ वो करना है, अपने फाइनेंसेस खुद करने हैं, तो करो, किसने रोका? तो देन आई विल सजेस्ट कि ना करें, क्योंकि एनर्जी एक ही जगह लगाओ, फोकस रहेगा। बेसिक्स क्लियर रख लो, बेसिक्स कि एनर्जी ड्रेन नहीं हो। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं करना है। तीसरा, जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस उसके बाहर नहीं जाना। अगर प्रोसेस में है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही किताब पढ़नी है तो एक ही पढ़नी है, पीएचडी नहीं करनी है। और जो ऑप्शनल के लिए आप कह रहे थे टेक्निकल, देखो अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है अच्छे से, कोई भी हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल डजंट मैटर, अगर कमांड है तो अपने ऑप्शनल के साथ जाओ, उस सब्जेक्ट के साथ, बिकॉज यू नो कि पिछले 5 साल मैंने यही पढ़ा है। हम उसको, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एग्जाम के परस्पेक्टिव से इसको अलाइन करना है और नंबर लेने हैं, पास करना है। पर जिसको नहीं है तो फिर जिन सब्जेक्ट्स में नंबर आ रहे हैं
पीएससी नंबर दे रहा है, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लो। इंटरेस्ट गया, ये ड्रामे नहीं चलते सर कि जिसमें आपको आपका इंटरेस्ट हो वो वाला ले लो। इंटरेस्ट ले लिया 5 साल लगे तो क्या फायदा उसका, इंटरेस्ट वाले में नंबर ही नहीं आ रहे। जिन सब्जेक्ट्स में नंबर आ रहे हैं उसी में 2 महीने 3 महीने एक्स्ट्रा लगा लो, इंटरेस्ट अपने आप बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को। हमने नॉन मेडिकल से पढ़ा है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आता हमने वही पढ़ा है, पर फिर भी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, तो बार बार जब रीड करते हैं इंटरेस्ट आ जाता है ना स्टोरीज में, तो ऑप्शन में भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। पर आपने अगर पैरामीटर रखा कि नहीं जी इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है उसको, आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी नहीं है, आपने पीसीएम से की है ग्रेजुएशन, एंथ्रो पढ़ी नहीं, तो जन कॉमन सेंस भी ये कहती है कि एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि पढ़ा नहीं है। अब जब पढ़ोगे 2 महीने 4 महीने एक्स्ट्रा लगाओगे तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, कीप इट सिंपल यार। इसको जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना खत्म करेगी, खराब करेगी प्रेपरेशन। कोई और क्वेश्चन होगा तो वो पूछ लो। मेरा, हाँ वो भी नॉन मैथ से डायरेक्ट यूपीएससी, वो ये इतनी लंबी जर्नी हो गई, ये कैसे माइंड में आया। और ये वो भी नहीं सकते। 2018 में क्या हुआ, जब फाइनल ईयर था ना, तो सारे सोच रहे थे करना क्या है, 6 महीने रह गए सेमेस्टर में, तो करेंगे क्या। मैं भी सोचा यार क्या करेंगे, तो वैसे ही प्लान आया कि यूपीएससी कर लेते हैं। क्यों आया, 2017 का रिजल्ट आया, तो यूपीएससी के रिजल्ट के बाद फिर टॉपर्स नहीं देते आपस में, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ टॉपर्स टॉक जो होती है, उसमें 2-3 टॉपर्स की टॉक सुन ली। उसमें एक 61 रैंक था कोई सर, J&K से ही थे, उन्होंने आईएफएस लिया था, उनकी टॉक सुन ली, उन्होंने अच्छे से डिटेल्ड टॉक दी, जिसमें बुक लिस्ट बताई क्या क्या चीज़ें करनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें करनी है वो उन्होंने बताया, तो मैं कन्विंस हो गया यार कि नहीं हो जाएगा। तो उसके थोड़े दिन बाद फिर बुक्स मंगा ली, कौन कौन सी, लक्ष्मीकांत, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर और स्पेक्ट्रम, ये 3 मंगाई। कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर के 10-15 दिन बचे होंगे। इतना कहाँ था यार, बस इतना था कि उसमें आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होंगे, बस यही था। और टाइम लगा यार चीज़ों को, आर्ट्स वाले जो हिस्ट्री पॉलिटी है इनको बार बार रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है, अदरवाइज नहीं आती। मैथ का हो गया ना, जैसे फार्मूला याद कर लिया तो फार्मूले से क्वेश्चन निकलेंगे, यहाँ वो नहीं है, बार बार रीडिंग चाहिए आपको। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के व्हाट द मेजर रीजंस नहीं रहेंगे याद, तो बार बार करना पड़ेगा रिवाइज, उसके इम्पैक्ट्स क्या आते हैं रिवाइज करो। तो धीरे धीरे 5-6 महीने लगे, 1 महीना लगा था लक्ष्मीकांत पढ़ने में, पूरा 1 महीना। और पढ़ने के बाद मैं ये सोच रहा था कि लक्ष्मीकांत आ गई, नेक्स्ट डे 0, कुछ भी नहीं, तो पूरे डेडिकेशन से 1 महीना पढ़ा, पढ़ने के बाद भी लक्ष्मीकांत 0। उस बुक को 15-18 बार जब तक नहीं पढ़ोगे वो नहीं रहती याद। रीड करना है, प्लान बनाना है। आप ही में से कोई उठ के आएगा फिर 2 सालों में, अगले साल या 2 सालों में वो यहाँ आ जाएगा। पर बात वही है जो प्रोसेस को फॉलो करेगा। और कोई सवाल, बोर तो नहीं हो गए, बताओ कोई और सवाल। ठीक, 60-70% कवरेज हुई हो, तो प्रीलिम्स के लिए हमें मतलब सर ऑलमोस्ट सारे टीचर्स मतलब ये कहते हैं कि जैन में दिसंबर से तब तक आप मतलब मेंस की तैयारी, तो आज मतलब सर टाइप ऑफ स्टूडेंट की बेस्ड एजुकेशन टाइप ऑफ मतलब पूरा हमारा ये क्या है कि अभी अगर फॉर एग्जांपल शुरू से शुरू किया स्टूडेंट शुरू से सर ठीक है उसकी एटलीस्ट 20-40% हुई मतलब चीज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं तो बिलीव करता हूँ यार।
पर हमने ये डिसाइड करना है कि क्या हम वो एक्सेप्शन हैं। हर एक जगह में कहीं ने 6-6 महीने पढ़ के निकाला हुआ पेपर, पर अगर उनका बैकग्राउंड चेक करोगे ना, कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप क्लास, राइटिंग स्किल्स टॉप क्लास, ऑलरेडी पीछे से जितना पढ़ के आ रहे हैं जैसे उनकी अपब्रिंगिंग हुई है। ऑब्जेक्टिव टाइप पास हो गया, मेंस पास, इंटरव्यू पास, फाइनल सिलेक्शन। एक्सेप्शन है, पर हम उन एक्सेप्शन फॉलो करते हैं नहीं करते वो आपने देखना कि मैं हूं वो या नहीं। तो अभी चल रहा है अगस्त, 11 अगस्त हुई है। जनवरी में स्टार्ट कर देना आपने, जैसे प्री का क्वेश्चन सॉल्विंग, वो 15, 20, 30 क्वेश्चन पर डे। वो तो वैसे भी आप कर ही रहे होंगे ना किसी वेबसाइट से ऑनलाइन, या नहीं कर रहे? स्टार्ट करो यार, पर डे 5, 10, 15 क्वेश्चन फ्री के, किसी भी वेबसाइट से, इनसाइट्स है कोई भी है उसकी वेबसाइट से शाम को सॉल्व करने हैं। अदर देन क्लास क्या कर रहे हो? क्लास के अलावा आप कुछ कर रहे हो? उसी क्लास की रिवीजन, बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे आप लोग। 10 क्वेश्चन पर डे शुरू कर दो किसी भी वेबसाइट से। 10 क्वेश्चन पर डे प्रीलिम के सॉल्व करने हैं। इनसाइट्स कर लो फॉलो, मैं वही करता था। आपकी वेबसाइट पे सर है, अभी डाल देना। और जस्ट कोई भी हो, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सब्जेक्ट के रिलेटेड हो नहीं हो डजंट मैटर। वो डालते हैं, स्टैटिक भी डालते हैं, करंट वाले भी डालते हैं, और एक RTM डालते हैं, रिवीजन थ्रू MCQs। 10 क्वेश्चन, वो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे पर डे के हिसाब से। फॉलो करना शुरू करो। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं सारे? कौन सा? हिंदू पढ़ रहे हो सारे? क्या था आज का आर्टिकल, क्या था? मैंने पढ़ा नहीं। क्या था एडिटोरियल, कोई एक बताओ। पढ़ा था आज का न्यूज़पेपर? नहीं पढ़ा अभी? अच्छा, यहाँ शाम को आता है, कल का बता दो। कोई आर्टिकल बताओ। टैरिफ पे था, कौन लगा रहा है? USA, इंडिया पे कितने लगा दिए? 50% लग गया। मेरी एक और सजेशन रहेगी, जिन लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने में थोड़ी परेशानी आ रही है वो फिलहाल के न्यूज़पेपर छोड़ दो, नहीं चाहिए। रिलीजियस न्यूज़ नहीं पढ़नी है। दूसरा, दंगे वाली नहीं पढ़नी है, पढ़नी भी है, हेडलाइन पढ़ी, समझ आ गया। वो जैसे हिंदू मुस्लिम का है या कोई कास्ट बेस पे कोई दंगा हुआ है, बस उतना ही, कोई डिटेल्स में नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, ताकि कल को अगर मैं GS2 में या 92 में कोई आंसर लिख रहा हूँ उसमें वो यूज़ हो जाए कि ऐसा ऐसा रिसेंटली इंडिया में ये इस जगह पे ये हुआ था, बस। दूसरा, फ्रंट पेज पढ़ा, शिफ्ट कर। अगर कोई मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, उसमें आता है एक्सप्लेन्ड पेज। एक्सप्लेन्ड पेज में 3 एडिटोरियल होते हैं, ऊपर नीचे बड़ा वाला और एक नीचे छोटा। वो एक्सप्लेन्ड पेज पूरा पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, सारा समझना है। अच्छे से एक्सप्लेन किया था टॉपिक को, वो पढ़ लिया। जब एक्सप्लेन पढ़ लिया, उसके साथ में होते हैं नेक्स्ट वाले पे 2 एडिटोरियल वाले पेज, वो पढ़े, बात खत्म। आगे देखते गए, अगर कोई स्पोर्ट वाला कोई है, कोई न्यूज़, तो वो पढ़ ली, बस खत्म न्यूज़पेपर। तो नहीं बनाने नोट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैगजीन वाले बना रहे हैं ना, वो इतना टाइम इतना पैसा दे रहे हैं जिस बंदे को, कंटेंट क्रिएटर को, तो आप क्यों कर रहे हो वो काम? मैगजीन लो, रीड करो, बात खत्म। जो टाइम बचता है उसको कहीं और इन्वेस्ट करो। मंथली एक मैगजीन। मैंने तो न्यूज़पेपर फॉलो किया था बड़े बाद में। मैं समझ कर 2-4 लाइनें बोलूंगा, इसको कर लेना ग्रैब अगर कर पाओ तो, ठीक। पहले टाइम पीरियड वाइज, अगस्त चल रहा है ना, अगस्त। जिन लोगों ने तैयारी अभी 2-4 महीने ही हुए शुरू किए हुए, आई विल सजेस्ट दिसंबर तक जितना रीड कर पाओ कर लो। जो चीज़ भी रीड करनी है कर लो, ऑप्शनल है कर लो। दिसंबर तक सारा टाइम आपका। दिसंबर के बाद का टाइम शुड बी प्लान्ड इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। जनवरी फरवरी 2 महीने थोड़ा सा लिखना है, 2-4 ऐसे अगर लिख सको, नहीं लिख सको कोई चक्कर नहीं, मेंस के उसके प्री के बाद लिख लेंगे। जनवरी फरवरी 2-4 ऐसे लिख लेने हैं और जनवरी से ही क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देने हैं।
हर 15 दिन के बाद में 20 क्वेश्चन पर डे बढ़ जाएंगे। इनको मेंटर्स ठीक ठाक होंगे ना, थोड़ा डंडा रखो सर हाथ में, डंडा टाइप। ये अभी ना इनको इसकी वो नहीं आ रही, ग्रेविटी को समझ नहीं रहे। हाँ, वो डर आपका डर खत्म करेगा आपका मेंटर, डंडे वाला। उस पर भरोसा करना है पहले, ठीक है। हर 15 दिन के बाद 20 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से बढ़ा देने हैं। ये चीजें की हुई है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। 3 महीने फिर टेस्ट सीरीज हो गए, तो 2 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज दे देनी है, देन फिर प्री होगा, भगवान की मेहर है तो प्री पास होगा। उसके बाद मेंस में शिफ्ट कर जाएंगे। मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, सिर्फ कुछ रीड नहीं करना। रीडिंग सिर्फ जनवरी फरवरी तक ही होती है, उसके बाद रीडिंग नहीं होती। देन यू विल राइट डाउन, अपनी नॉलेज को कॉपी पे उतारोगे, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? खत्म? बोलो जोर से। हाँ। ठीक, ठीक। ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल का इसलिए बोलते हैं कि वहां मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लोगे। रीजन बीइंग, एथिक्स में आपने जब सिलेबस कर लिया, डेफिनेशन से पढ़ ली सारा, उसके बाद कुछ बचता नहीं पढ़ने को, सिर्फ लिखना ही है, ठीक है। कंटेंट उतना ही है। GS 1 2 3 में कंटेंट सेम नहीं है ना, वो न्यूज़ के हिसाब से वेरी करेगा। एथिक्स वाला वेरी नहीं करेगा, ऑप्शनल आपका वेरी नहीं करेगा, ठीक। दूसरा, एसए में कितने टॉपिक्स लिखने हैं? GS का एक एग्जाम जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन लिखने हैं? 20 क्वेश्चन। वो 20 अलग अलग चीजें सोचनी है। एक क्वेश्चन में 2 सब पार्ट्स भी होते हैं, वो भी सोचने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे। ऐसे में क्या है, 2 टॉपिक्स है, एक टॉपिक 1.5 घंटा उस पर सोचा, 1.5 घंटा दूसरे पे सोचना, तो यहाँ थोड़ा ईजी रहता है अगर फ्लो बना हो। यहाँ फ्लो है, एथिक्स में सिलेबस कांस्टेंट है, ऑप्शनल में भी सिलेबस कांस्टेंट है, तभी यहाँ स्कोर कर पाते हैं। बट एक बात और याद रखना, GS 1 2 3 4 में अगर एथिक्स वीक है तो GS 1 2 3 में से किसी एक में एक्सेप्शनल नंबर ले आओ। आए हैं बच्चों के? एथिक्स में 100 है, GS 2 में 134 है। कहने का क्रक्स ये है कि 4 GS पेपर्स में से किसी एक पेपर में एक्सेप्शनल नंबर ले आने हैं, बाकी तीनों में एवरेज नंबर ले आने हैं, मेंस पास। और अगर ऑप्शनल में अच्छे नंबर आ गए तो देन यू आर इन द लिस्ट, प्रोवाइडेड इंटरव्यू अच्छा जाए, ठीक है। सो लास्ट में कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी, और 2-2.5 घंटे मैंने जो बातें करनी थी उसको सुनने के लिए वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, और मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। तलील सर को भी वेरी थैंक यू। और ये मेरा पहला है ऐसा मॉक जो इंटरेक्शन, मैंने कभी किया नहीं है, तो जितना रहा हो सकता था उतना ही रहा है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। गोल गोल करने की बात है, ट्राई नहीं की है और ना मेरे से होती है। अब ये बात मेरे सीनियर्स को भी पता चल गई है कि इससे गोल मोल नहीं होगा, ठीक। तो बाकी एक लंबी जर्नी रही है, अभी भी चल ही रही है। वी विल सी, विल मीट नेक्स्ट ऑल्सो सम टाइम, ठीक है। थैंक यू सर।